Thank you so much. Lovely. And thank you again. So coming back to the point, homeschooling, and I was talking कि अगर कोई गेम खेलता है, and when I'm speaking about something, don't see or make your emotional direction in that particular zone only, but try to understand what is behind that. And if you still have some questions, please note down and we'll definitely talk about it. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग कि जब कोई गेम खेलता है और गेम अच्छा खेल रहा है और फिर हमको लग रहा है कि यार ये बच्चों से उस चीज़ में थोड़ा सा अलग है, बट आजकल अभी राइट नाउ देयर इज नो इंस्टीट्यूशन विच मेक्स देम लर्न गेमिंग, विच मेक्स देम लर्न अगर कोई बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, बट देयर इज नो इंस्टीट्यूशन विच इज मेकिंग देम हाउ देयर सोशल प्रेजेंस शुड बी देयर. There's no class about it. But if you think that is something which your kid is doing outstandingly well, you make a structure, you make a discipline in that particular thing, you yourself get involved into that thing, you take the governance, how you shape the zone, how you shape the timetable, how you shape particular structure की उस चीज को डिसिप्लिन वे में कैसे किया जा सकता है, दैट कम्स एज अ होम स्कूलिंग. बाकी सारी चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं उस पर हम आगे बात करेंगे. सो इट इज एक्चुअली डिजाइनिंग थिंग्स. जब कोई बोलता है कि होम स्कूलिंग स्ट्रक्चर है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, नो, मैं कहता हूँ होम स्कूलिंग स्ट्रक्चर भी नहीं है, मैं कहता हूँ होम स्कूलिंग अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है. क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड होगा ना तो बच्चा रिबेलियन बन जाता है. बच्चे को पता ही नहीं है कि हम लोग ने स्कूल, कभी कभी लोग होम स्कूलिंग में क्या करते हैं, दे विड्रॉ देयर किड्स फ्रॉम स्कूल बट दे डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर. होता क्या है, कभी जो भी करना है तो वो जो भी करना है तो धीरे धीरे करते करते बच्चा एक ऐसे जोन में चला जाता है वेयर ही टर्न्स आउट टू बी रिबेलियस. फिर उसको वापस लाना है टफ. सो होम स्कूलिंग में हमें कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाना है. कस्टमाइज स्ट्रक्चर क्या, कि जैसे स्कूल में ये होता था ना कि सुबह बच्चे को उठ के स्कूल जाना ही है. सो होम स्कूल में यू कैन चेंज इट टू अ वे कि सुबह 7 बजे जाना था, नहीं, अगर आपका टाइम आपको अलाउ कर रहा है और उसके लिए भी डिसिप्लिन, तो आपको एक घर में चार्ट बना देना है. जो कभी कभी व्हाट आई डू, अगेन आई टॉक अबाउट व्हाट हाउ what are the things I'm doing, how am I doing. So I'm just telling you about an example, and what why I'm discussing more about this topic right now, because this is what is the crux, the backbone of this workshop will be. So to do homeschooling, you have to make customize a structure as per your child needs so that उसका इंटरेस्ट भी जगा रहे. हमें उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं करना. बेटर पार्ट ऑफ होम स्कूलिंग इज हम उसके एग्जाम्स नहीं लेते हैं. वी आर जस्ट concerned about the skill he is learning. We are just concerned about कि the rote learning is not happening, and not just concern about कि यहाँ पे वो कुछ करेगा और हम उसको दूसरे से कंपेयर करेंगे, रैंक आएगी उसकी, नो. सो होम स्कूलिंग गिव्स यू a governance where you take things in your hand, you educate him well, you make him a good human being, you make him happy, you make him go through his childhood. Homeschooling is not rushing. Okay, you don't have milestones कि इस साल में यही करना है, अगले साल में कुछ और होगा. So that's what homeschooling is. Homeschooling is never anti-school. Homeschooling is never promising something that you'll bring home a school. Okay, so it's not, it's really not, it's actually a customized design. Okay, so talking about my journey, who is speaking in front of you? I My last company was TCS, and it was the 15th year where I was given opportunity. I was heading energy and utility. I was having a national role in TCS into blockchains. Okay, so it was a new technology. I was doing good. I was offered to move to US. Okay, and that was a time when I thought moving to US would be good, or moving to the roots would be good. Because every time in this 15 years हम सबकी जर्नी में बहुत बार ऐसे हुआ है कि हमने हमेशा सोचा है, आफ्टर बिकमिंग पेरेंट देर इज अ शिफ्ट, कि हम हमेशा हमारे बारे में तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि यार नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, 15 साल में कहाँ देखते हैं, कॉलेज खत्म करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट वेन यू बिकम पेरेंट, your mindset shifts a little. You start thinking about, आप बहुत सारी किट्स लेते हो, बहुत सारे गेम्स लेते हो अपने बच्चों के लिए. आप वो 6 महीने का रहता है ना, तो हम उसके 6 साल तक की प्लानिंग करने का सोचते हैं कि ये भी करेगा, वो भी करेगा, जो हमने नहीं किया वो भी वो करेगा, जो हम करना चाहते थे वो भी उससे करवाएंगे. एंड दिस इज अ शिफ्ट जो कि नेचुरल है, जो सब में आता है, मुझ में भी आया. एंड दैट्स वेयर आई थॉट कि, and always I used to think about my parents also, not just my kid. I used to think about my parents. And just a little background that I used to work when I was in TCS. The last my location was Indore, and my wife is a chartered accountant by profession. So she was working as a
chartered accountant for Sagar Smart City in my hometown itself. And my kids were growing, like I used to travel back to Sagar. It was like 400 kilometers journey, and Friday evenings में मैं वहाँ से travel करता था, and I used to, sit with my kid. Arith was growing up. He was like 3 4 years at, then, and I was just looking at him on weekends. Friday को शाम को आना, and Sunday midnights को सबको रोता हुआ छोके, मतलब बच्चा रोता है obviously when you go, and fathers have a different role, mothers have a different role. Fathers are physically more involved, mother is emotionally more involved, but that growing age, kid needs a physical involvement more. So that gave me a shift. एंड मुझे ये भी लगा कि जब मैं अपना करियर प्लान कर रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ, और व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग पीपल, आई वाज इनटू मैनेजरियल रोल अगेन, एंड आई वाज इंटरव्यूइंग पीपल, एंड आई सॉ कि मार्कशीट्स वर सेइंग डिफरेंट with what they were talking. In the interviews, I saw ki they were, knowing this language, they were knowing everything on papers, but they were not knowing when it comes to the real world. They were not having that hands-on skills. Now, I'm not talking about everyone, but I'm talking about 95%. And that's what our system is designed in such a way that we are more concerned कि बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, बिकॉज स्कूल्स वांट टू शो कि हमारे स्कूल से इतने बच्चों ने ना आईआईटी क्रैक किया, हमारे स्कूल्स ने इतने बच्चों ने रैंक होल्डर्स हैं. दे आर नेवर कंसर्न कि जब स्कूल्स में ना मोस्टली जब एनुअल फंक्शन होता है या कोई साइंस एग्जीबिशन होता है, आई सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर रनिंग बिहाइंड. दे चूज सम पीपल, सम किड्स कि ये लोग बनाएंगे, फिर पेरेंट्स को बताते हैं आपको ये भी बुलवा देना, ये भी एक बड़ा सा 10,000 का एक आजकल, बिकॉज द एक्सपेंसेस हैव बीन मोर. क्लास ब्यूटिफिकेशन को ही ले लें कि चार्ट्स पेरेंट्स बना के देते थे, एंड दे यूज टू गो बैक टू, इट वाज नेवर अ थिंग कि हम एक एक जोन बनाए जहाँ पे सारे बच्चे बैठे हैं, एक टीम वर्क हो रहा है, और सब बच्चे चार्ट में कैसा भी बन रहा है, because it's their journey they have to show. But it was never happening because we have been grown up in such a way, we have seen that cycle and that's repeating. And I'm sorry, so that was happening, and when I saw कि हमको किसी को भी ना कंपनी में लाके फिर उसको 6 महीने ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, तो वो मार्कशीट कहाँ गई, वो उनकी पूरी जर्नी कहाँ गई? अगर पूरे थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव लर्नड अ लॉट, दे हैव सो मेनी गुड मार्क्स, दे एंटर्ड इनटू बिग कंपनीज, एंड व्हेन दे एंटर, entering is a different part. Survival is the major part. Only those survive who really learned, who grew, and those who really learned, those who excelled, their appraisal happened very well, and उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी. बट मेजॉरिटी पीपल जो रहता है ना, जो स्टैक रहता है, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि यार मैं अभी ये चीज़ में खुश नहीं हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स. आई वॉन्ट टू राइट अ बुक, आई एम अ गुड कुक, आई एम अ इन्फ्लुएंसर, आई कैन टॉक वेल. मैं गिटार बजाना चाहता था, मैं खेलना चाहता था, मैं क्रिकेट. एंड दिस इज वॉट अ कॉमन डिस्कशन हैपन ड्यूरिंग द लंच ब्रेक्स. जब भी एक टेक फेस्ट आता है, जब भी कोई अच्छा फेस्ट आता है, जब भी कोई फाउंडेशन डे आता है कंपनीज में भी, एंड देन देयर कम्स कि उन सारे बच्चों को लाया, एंड दे शो देयर पैशन. और फिर 10 12 साल के बाद फ्रस्ट्रेट होके उनको लगता है कि यार अब मैं ये करूँगा या कर पाऊंगा कि नहीं, या करना चाहिए कि नहीं. So, so many things which happen. So, okay. Now coming back, I talked a lot. So now talking about, so you can see the two pics. One is Arith, who is turning 9 tomorrow. So tomorrow is birthday, and you know, okay. So you can wish him happy birthday. And below you can see that's Anaya. She just turned 2, and I tell you, home about homeschooling. It was never into a plan. Okay, it was really never into a plan, because हम भी सब उसी चीज़ में चल रहे थे कि जैसे सब चलते हैं ना, कि यार सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सो आई एनरोल्ड हिम टू द बेस्ट स्कूल आई कैन, जहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था, जहाँ Excuse पे me, sir. Sir, सॉरी. we cannot see the screen. Sorry to interrupt you. ओके, इज इट विजिबल? गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट. I'll share again. Give me a moment and I'll share. Is it visible now? Yes, it's visible now. Oh, Thank you so thank you. much. Thanks for telling me that. And I think we can all go back on mute now. Okay. So I was talking about Arith. I think we.
Okay, so there's some glitch. So what I was saying that homeschooling was never, my plan, but it came to me as, something a option when I researched more, when I, had good connects. My, half of my team was in US. I was interacting with them. It was like not in US, it was in France, it was in Italy. It was like spread. We all those who work in IT, they know that, they have their teams spread across, and they have people who can, they can coordinate. And then I saw the trend is changing, and then, it came into my mind, and I researched well. My research was so well that I started, thinking about homeschooling. I thinking about not just homeschooling, about unschooling, because that's what hit me really hard. But one thing again I want to clarify here. If you can see this academic excellence certificate that says last year certificate, where he scored, his percentage was 96.5. And मोस्ट पीपल थिंक कि होम स्कूलिंग सिर्फ वही लोग करते हैं जो स्कूल से अपने बच्चों को विड्रॉ करना चाहते हैं, जो एकेडमिकली जिनका बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, सोशली इज गेटिंग वीक, और इज नॉट डिसिप्लिन, और बहुत सारी चीज़ें होती है. बट आई वॉज, लकीली आई वॉज गुड हेयर. सो आई वॉज आई वॉज मोर कीन कि उसका इंटरेस्ट मैं कैसे कर सकूँ, बिकॉज जहाँ पे मैंने उसको एनरोल किया था वहाँ पे 3:30 4 बजे तक उसका स्कूल रहता है. मॉर्निंग 7 ही लीव्स, वहीं पे ही ब्रेकफास्ट होता है, वहीं पे ही लंच होता है, वहीं पे ही देर इज एवरीथिंग. हॉर्स राइडिंग है वहाँ पे, देर इज स्विमिंग पूल, देर इज बिग ग्राउंड, ओलंपिक क्लब है, शूटिंग है, एवरीथिंग है. बट हुआ क्या, मतलब मैं अपना माइंडसेट बता रहा हूँ. व्हेन आई यूज टू गो देयर ना, कभी भी आप जब स्कूल जाते हैं ना, आप भी ऐसा करना. आप ऐसे ही रैंडमली एक विजिट करना है स्कूल में 12 बजे, या अगर आपके बच्चे की छुट्टी 1 बजे होती है तो 12 बजे पहुंच जाओ. 3 बजे होती है तो कभी 1 बजे पहुंचो. 2-3 घंटे पहले आपको पूरे सारी फैसिलिटीज, व्हाट दे प्रॉमिस ना, दे ऑल सीम्स टू बी एम्प्टी. वहाँ पे सारी चीज़ें खाली दिखेंगी आपको. ना वहाँ पे कोई प्लेग्राउंड पे बच्चा खेलता हुआ दिखेगा, ना वहाँ पे कोई क्लब्स दिखेंगे. एंड व्हेन सडनली कोई प्रोग्राम होता है या फिर कुछ चीज़ें होने वाली होती है, उससे 1 महीने पहले प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, और कभी किसी किसी स्कूल में 15 दिन पहले. और सभी लोग लगे रहते हैं कि यार हमें ना सिलेबस कंप्लीट कराना है, एक ऐसा सिलेबस जिसका मुझे नहीं लगता पर्सनली. अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम नॉट रिबेलियस, बट दैट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज आई रीच समवेयर, तो मुझे आज भी नहीं पता. सब लोग बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन सीखने से ब्रेन शार्प होता है, लेकिन ब्रेन शार्प तो बहुत दूसरी चीज़ों से भी होता है, राइट? उसी चीज़ से कैसे होता है? जिस चीज़ से कोई बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, उस चीज़ से ज़्यादा ब्रेन शार्प होगा, आई थिंक. बिकॉज देर आर मोर सेंसरी एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन द मार्केट विच यू कैन रिसर्च अगेन, लाइक आई डिड. बिकॉज आई नेवर से कि जो मैंने किया है वही आप भी करो. आई जस्ट ऑलवेज एजुकेट पीपल ऑन अ थिंग दैट येस देर आर मोर वेज अवेलेबल. Because I reached somewhere and I saw कि no, that's not working, boss. There is something which needs to be changed. अगर किसी भी बच्चे को जिसने एमसीए किया है या बीटेक किया है या बहुत अच्छे कॉलेज से भी इंजीनियरिंग की है, उसको अगर इंटरव्यू करने के बाद वहाँ पे जब कोई पहला असाइनमेंट मिल रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है ना, सो देयर इज सम गैप. और मैं ये सोचता हूँ अगर उसी को, जब वो 15 ईयर्स का हो गया था या 16 ईयर्स का हो गया था, और उस वक्त पे अगर उसको जो इंटरेस्ट था, अगर उसको इंजीनियरिंग बनना था, तो उसको 5 क्लासेस अलग अलग चीज़ की, रिमूविंग अदर सब्जेक्ट, अगर उसको हिंदी लिखना आ गया था, इंग्लिश लिखना आ गया था, और उसको उसी चीज़ में नहीं जाना था, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हटा के उसको वहाँ पे C++, जावा, AI जो अभी आ चुका है, ब्लॉकचेन, देयर आर सो मेनी थिंग्स इमर्जिंग, AWS. लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर दोज हु आर नॉट इनटू IT, दे माइट नॉट बी थिंकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स. बट अगर उसको किसी एक टूल के बारे में सिखा दिया गया होता ना, वो अपने उस कंपनी में जाके एक्सपर्टाइज कर देता. और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे कब समझ में आया कि जब मैं ब्लॉकचेन में एक नेशनल रोल हेड कर रहा था, मेरी 1400 पीपल की टीम थी, ओके. एंड द पर्सन हुम आई वॉज कोऑर्डिनेटिंग, जिसको हमने हायर किया था US से, जो कि कंसल्टेंट था ब्लॉकचेन का, जो हम सबको सिखा रहा था कि कैसे क्या करना है. ये मैं एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी थी, और उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 21 ईयर्स थी. एंड ही वॉज द मोस्ट, he was charging huge, he was charging fancy for just 1 hour. He was coming in, he was just giving us 3 hours a week. ये सब लोग समझते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा मिल रहा था. तो आई थिंक their system is something different, and he was a homeschooled kid. He was into that, and he learned that, and he just reached that you know zenith of that. So that's where I think चीज़ों को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत थी, और वहीं पे मैंने वही सब किया. ओके. सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ द थिंग, दैट जब हम होम स्कूलिंग करते हैं तो होता क्या है.
होम स्कूलिंग की ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट लेयर है जिसकी वजह से लोग वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, ओके, जैसे हम सब हैं, हम सब एक्साइटेड होते हैं कि अरे यार कुछ तो मिला है जिसको हमें ज्वाइन करना चाहिए, राइट। तो वो फर्स्ट लेयर में हम सब लोग, दिस होल वर्ल्ड कम्स इनटू द फर्स्ट लेयर, जो सब सोचते हैं, एक्साइटेड है, कोई ट्रेंड समझता है, कोई कोई वीडियो बनाना चाहता है, तो हम घर पे ये बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो वीडियो बना रहा है। और वीडियो बनाना बिल्कुल गलत बात नहीं है, मतलब आई टेक इट वेरी गुड, बिकॉज दैट इज समथिंग, जिस दिन आपको लगेगा ना कि स्कूल्स में भी उस चीज़ के बारे में इन्फ्लुएंसर की ट्रेनिंग होने लगी तो सब लोग उसको ओके मानने लगेंगे, बिकॉज बीइंग अ इन्फ्लुएंसर कोई आसान बात नहीं होती है। जो भी आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, लोग सोचते हैं कि अरे यार वो नाच रहा है, वो गाना गा रहा है, जोक बता रहा है, इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब, आई मस्ट टेल यू। बिकॉज एक ही चीज़ में एडिटिंग सीखना, कंटेंट राइट करना, आप सिर्फ उसको देख रहे हो कैमरे के सामने आके उसने ये सब कर दिया, बट द पब्लिक स्पीकिंग स्किल, द पब्लिक अपियरेंस स्किल, उसको ये समझना कि मुझे क्या पहन के वहाँ पे जाना है, उसको ये समझना कि मुझे लाइटिंग कैसे अरेंज करनी है, उसको ये समझना कि मुझे पोस्ट करने से पहले एडिट कैसे करना है, उसको ये समझना कि साउंड क्लैरिटी कैसी होती है, सो मेनी थिंग्स। सो that's a great job. So again, now coming back to things, talking about the first layer where everybody is standing right now, मूविंग टू द सेकेंड लेयर, जहाँ पे हम क्या होता है ना, हमको एक डाउट आता है जैसे ही कोई भी होम स्कूलिंग स्टार्ट करता है। कोई होम स्कूलिंग के तीन चार पैटर्न्स हैं, एक हाइब्रिड है, एक फुली होम स्कूल्ड है, एक रिवर्सिबल जोन है, आई विल टॉक अबाउट दैट इन द लेटर थिंग्स, बट देयर कम्स अ सीन व्हेन यू जॉइन, डू स्टार्ट डूइंग होम स्कूलिंग, फिर हमको लोग बोलते हैं या हम ब्रैक करना शुरू करते हैं लोगों के सामने, यार मेरा ना बच्चा कल से स्कूल नहीं जाएगा, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, आई एम हैप्पी डूइंग होम स्कूलिंग। और फिर क्या होता है कि हम डेली कुछ प्लान करते हैं, फिर आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, फिर आज ये किया ही नहीं, मेरा बच्चा तो यार लेजी है, मेरा बच्चा घर पे नहीं है, इसको स्कूल भेज देना चाहिए क्योंकि इसकी ना कोई रूटीन ये बना ही नहीं है उस चीज़ के लिए। ओके, फिर सोचते हैं कि यार हम ऑफिस जा रहे हैं, कोई वर्किंग पेरेंट्स हैं वो होम स्कूलिंग चूज करते हैं कि हम मॉर्निंग में या इवनिंग में या वीकेंड्स पे वील डू इट। वीकेंड्स पे किसी दिन उनको किसी पार्टी में जाना है, या वीकेंड्स पे वो थोड़ा सा फटीग है, एंड देन दे थिंक कि यार हमसे ये नहीं हो रहा है, वही सही था। सो डाउट कम्स, रिलेटिव्स, कंपैरिजन, स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, हम करवा पा रहे हैं कि नहीं। सो सेकंड लेयर में लोग एंटर कर जाते हैं, ओके। धीरे 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 जो सेकंड लेयर को क्लियर करते हैं, बिकॉज उनको सारी क्लैरिटी होती है, दे दे जॉइन द कम्युनिटीज। होम स्कूलिंग की बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, होम स्कूलिंग के बहुत सारे सर्कल्स हैं, होम स्कूलिंग की, वी हैव ऑल्सो, वी आर रनिंग अ सर्कल जहाँ पे अराउंड द ग्लोब जो भी होम स्कूलिंग सक्सेसफुली कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उनको लाते हैं सेशंस में और धीरे धीरे डाउट्स क्लियर होते हैं। फिर आता है फटीक। फटीक का मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी होम स्कूलिंग बहुत ढंग से करता है ना, जो भी, हु एवर इज डिजाइनिंग होम स्कूलिंग इन अ परफेक्ट वे, विल एवर, will always land into a third layer, that is fatigue, because fatigue is again a conscious parenting का एक पार्ट है कि यही हमारा काम है। हम ऑलवेज स्कूलिंग में भी फटीग में रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। हम ऐसे फटीग में रहते हैं कि स्कूल में कॉपी कंप्लीट नहीं की, वो हमारा फटीग है कि हमें कॉपी कंप्लीट कराना है। टीचर का मैसेज आ जाता है डायरी में, एक वो लिख के आ जाता है, आजकल ग्रुप्स भी बन गए हैं कि आपके बच्चे की ये कॉपी देखो पूरी रेड है, आपके बच्चे को ये होमवर्क मिला था, ये होमवर्क किया नहीं। आपका बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है, फिर ट्यूशन वाले दीदी भी हमको कंप्लेन करती है कि ये तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, एंड वी आर ऑलवेज इन अ फटीग। बट दैट फटीग वी आर रेडी टू हैंडल, बिकॉज वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, या तो बच्चे को चिल्लाना पड़ता है, या तो बच्चे को कभी कभी दो हाथ देने पड़ते हैं, एंड देन हम फिर से उसको हैंड ओवर कर देते हैं क्योंकि थिंग्स आर आउटसोर्स यार। यहाँ वाला फटीग जो होता है ना, वो एक इंटेंशनल फटीग होता है। वो एक ऐसा रहता है कि यार मैंने ना कुछ सोच रखा है, ये चीज़ मैंने देख रखी है, मेरी रिसर्च है, इस पे मुझे करना है, ये कॉन्शियस फटीग है जो हमको सबको होता है। जो हम कंपनीज में भी काम कर रहे हैं, जो कल को केस लड़ने वाले हैं, कोई लॉयर्स हैं, उनको फटीग रहता है कि कल मेरी हेयरिंग है तो मुझे ये प्रिपेयर करना है, मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे ये करवाना है। सो दैट्स द फटीग विच इज़ नाइस। And once you start handling your fatigue clearly with a structured way, by talking to the peers, by listening to the workshops, by going with a deep research, you come into the fourth layer, which is clarity. And once you enter to the fourth layer, you enjoy your holidays, you enjoy everything, you have a low cost budgets, you have everything। आपको कभी भी कहीं प्लान करना है ना, तो आपको समर वेकेशंस का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको कहीं भी निकलना है, किसी किसी पार्टी में निकलना है, किधर जाना है, अभी सुबह को मन नहीं कर रहा, रात को करेंगे, इस महीने में मन नहीं कर रहा, अगले महीने करेंगे। जब आप समझ जाते हो ना, तब होम स्कूलिंग पिचेस वेल, होम स्कूलिंग गोज वेल। यू आर इन टू अ जोन जहाँ पे आपको, आपके बच्चे को भी लगने लगता है कि दे आर रियली हैविंग देयर चाइल्डहुड। और बच्चों का एक ही सिस्टम है, वंस दे आर अलाउड टू लिव देयर चाइल्डहुड, दे एंटर इन टू एडल्टहुड, जहाँ पे वो ये नहीं कहेंगे यार बचपन अच्छा था। जैसे हम कहते हैं, आज हम हमेशा कहते हैं, वेन एवर अवर लंच टाइम ब्रेक्स वर हैपनिंग, वी ऑलवेज यूज टू से
यार उधर तब ये कर लिया, तो बचपन में सब सही था यार, नानी के घर जाके सब अच्छा लगता था, यहाँ पे अच्छा लगता था, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट. बट वेन दे लिव देयर चाइल्डहुड फुली ना, दे लिव देयर एडल्टहुड ऑल्सो फुली. सो दिस इज इट. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, प्रॉब्लम क्या होती है ना, सब लोग लेयर टू में ही अटक जाते हैं. क्यों अटक जाते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ. ओके. सो मूविंग नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट होम स्कूलिंग. जो सबसे मेजर क्वेश्चन रहता है सबका कि हमको होम स्कूलिंग करनी है, हम स्टार्ट कैसे करें. और हम स्टार्ट कैसे करें, तो लोग उसमें बस यही सोचते रहते हैं, एकेडमिक्स कैसे होगा कवर. एंड दैट्स द मेजर क्वेश्चन, जब भी हम होम स्कूलिंग की बात करते हैं, घर पे क्या पढ़ाना है, कौन से बुक्स खरीदने हैं, सब लोग यही सोचते रहते हैं. बट द रियलिटी थिंग इज, if I say that now my kid is ready to be homeschooled completely, I will be leaving a hybrid model to a full-time homeschooling model, is not because he's academically skilled, or he's good with all the subjects, he's speaking English or he's not speaking English, he's publicly being well. No, मेरा उसके साथ इमोशनल कनेक्ट अच्छा हो चुका है. मैं उसको समझ चुका हूँ, वो मुझे समझ चुका है. डेली इट्स देयर इज अ फ्रिक्शन ऑलवेज. ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सही चलनी है. देयर आर टाइम्स जहाँ पे मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे मुझे उसको और डिसिप्लिन करना है, अभी रोकना है, किसी चीज़ के लिए मना करना है, रोना गाना चलेगा, ठीक है. बट येस, इमोशनली वी आर कनेक्टेड नाउ. सो दिस इज वेयर व्हेन द फर्स्ट स्टेप, व्हेन यू थिंक ऑफ इवन डूइंग होम स्कूलिंग, क्या आप इमोशनली अवेलेबल हो. अकेडमिकली छोड़ दो, सारी चीज़ें आउटसोर्स की जा सकती हैं, एक ही चीज़ आउटसोर्स नहीं की जा सकती, दैट इज पेरेंटिंग. बिकॉज यू कैन ओनली पेरेंट योर चाइल्ड. जब आप सोचते हो ना कि मैं उसको कहीं और छोड़ के आया हूँ, दे कैन नॉट गिव दैट लव, दे कैन नॉट गिव दैट इमोशन सपोर्ट, दे कैन नॉट गिव दैट सिंपथी और एम्पथी. ओके, इट्स यू. सो इफ यू आर इमोशनली अवेलेबल, you are connecting well, so that's the first step of homeschooling. आप उसमें टाइम लगा दो, उसमें 6 महीने लग रहे हैं, 6 महीने अपनी रूटीन सेट करने में लगा दो. और इमोशनली कनेक्ट करने के लिए लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास ना उतना टाइम नहीं है. अगर आप बच्चे को सोने से पहले एक छोटी सी उसके लिए, कभी भी आप फ्री बैठे हो ना, जब बहुत सारा टाइम रहता है, जब हम फ्री रहते हैं, जब हम रील्स देखते हैं, अगर आपने 10 मिनट एक ऐसा रील देखा है, ऐसा सर्च कर लिया ना कि आज मेरे को उसको बेड टाइम कौन सी स्टोरी समझानी है या सुनानी है, यू नो यू आर इमोशनली अवेलेबल फॉर योर किड. बिकॉज सोने से पहले अगर आप उससे इतनी देर, सिर्फ 10 मिनट की भी एक स्टोरी उसको नरेट कर सकते हो, लिविंग एवरीथिंग असाइड, जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो, आप इमोशनली उससे कनेक्ट करते हो. एंड दैट्स वॉट फर्स्ट थिंग इज. सेकेंड थिंग, हमको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है. हम सोचते हैं कि हमको साइन थीटा कॉस थीटा भी समझाना है, हम सोचते हैं उसको ज्योमेट्री भी सिखानी है, हम सोचते हैं उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी सिखाना है, हम सोचते हैं उसको ये भी कराएंगे, हम सोचते हैं उसको सोशल स्टडीज़ भी सिखाएंगे. हम आज भी, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा पूरा सिस्टम जो उनको पढ़ा रहा है ना, वो जो हो चुका है पास्ट के बारे में आउटडेटेड, कोई फ्यूचर लेड स्टडी कर ही नहीं रहा है, कोई फ्यूचर लेड ट्रेनिंग दे ही नहीं रहा है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर लेड ट्रेनिंग, बिकॉज आज की जीके बुक्स अगर आप अपने बच्चों की उठाओगे ना, स्टिल दे आर आस्किंग हु इज द प्राइम मिनिस्टर, स्टिल दे आर आस्किंग. मैं उसको भी छोड़ देता हूँ, एक कंप्यूटर की बात करता हूँ. कंप्यूटर में किड्स आर बीइंग जज्ड कि वो कंप्यूटर का आंसर कैसे लिख के आएगा, कि ये वाली चीज़ में क्या करना है. रेदर आई एम सेइंग कि कंप्यूटर में बच्चे को जज करना चाहिए. अगर रियली यू वांट टू जज, यू कैन जज हिम बाय गिविंग देम कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम प्रैक्टिकल्स बोलते हैं. और वो छोट कम मार्क्स का, 20 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है उनका रिटन टेस्ट, जहाँ पे उनको लिखना है कि कंप्यूटर में ना ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इधर का बताओ, थ्री सिस्टम्स कौन से थे, मेन फ्रेम क्या था, विंडो कौन सी थी, सो मेनी थिंग्स. सो इट इज आउटडेटेड. सो what really needs to be taught them is very little. It is like intentful. It is not about too much, it is about consistency always in homeschooling. So that's again, 1 घंटे का स्ट्रक्चर बनाओ, 30 मिनट्स का स्ट्रक्चर बनाओ डेली, बट इट शुड स्टार्ट ऑन टाइम. यू शुड हैव दैट रूटीन. उसकी डिसिप्लिन बनाने के लिए कि उनको लगना चाहिए कि नहीं यार, इस वक्त पे ना मुझे भी, मेरा माई पेरेंट इज ऑल्सो लीविंग एवरीथिंग एंड दे आर हैविंग अ सिस्टम जहाँ पे वो आके बैठेंगे, वहाँ पे मुझे आके बैठना है. ही शुड बी डिसिप्लिन इनफ कि उस वक्त पे वो खुद ही तैयार होकर, जैसे स्कूल के लिए खुद ही तैयार होकर जाते हैं, यहाँ पे भी खुद ही तैयार होकर आ रहे हैं. ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं ना, दीज आर वॉट मेक्स होम स्कूलिंग. सब लोग यही पूछते हैं कि 10th 12th का क्या होगा. आपका बच्चा भी 8 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 10th का क्या होगा, इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन. बट इसका मतलब ये नहीं है कि 10th का क्या होगा उसका आंसर नहीं है. बट राइट नाउ वॉट यू नीड इज what you think about and what you should research about. That will make your day. Moving next, what about syllabus? Okay, so we'll talk less about this slide because syllabus varies. बट कब क्या ज़रूरी है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका बच्चा 6 साल से छोटा है ना, तो कोशिश करो डिले
academics. कोई ज़रूरत नहीं है अभी उसको ये बताने की कि वो आपको आके घर पे बता रहा है कि कुछ एक नया सा उसने साउंड बना लिया है या कुछ एक नया सा उसने वर्ड सीखा है जो आप ही लोगों से सुन के, और उस वक्त पे आप उसको बोल रहे हो कि बेटा नोज बताओ कहाँ पर है, आईज बताओ कहाँ पर है। ये सब तो वो ऐसे ही सीख जाएगा। आप उसको बोल रहे हो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा के बता दो। आई मीन, उससे अलावा वो बहुत सारी चीजें, उससे बड़ी चीजें सी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार उसको याद करवा के आप उसकी मेमोरी कोई बहुत बड़ी शार्प नहीं कर रहे हो, क्योंकि उससे बड़ी चीजें वो बहुत सारी चीजें सीख चुका है। एक गाना बच्चा ना जो सुनता रहता है बार बार, वो अपने आप गा देता है। आप अगर घर पे आरती करते हैं, आप अगर घर पे प्रेयर करते हैं, उसको अगर साथ में बैठाओगे ना, थोड़े दिन के बाद वो प्रेयर खुद ही करने लगेगा, और वो लर्निंग ज्यादा अच्छी है, बिकॉज दैट इज शेपिंग अप हिज ब्रेन, हर ब्रेन। सो दैट्स वॉट यू शुड डू शुरुआत के ईयर्स में। बट देन थोड़ा थोड़ा आप आगे आते हो, फिर आप सिलेबस आता है, आप कुछ भी एनसीईआरटी से भी रेफरेंस ले सकते हो, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी वेल डिजाइन कि क्या क्या होना चाहिए उसमें, जो जो टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, यू ब्रिंग दैट अप। बोर्ड्स की बात बाद में करेंगे। अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बोर्ड्स, बिकॉज राइट नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग विच इज द रियलिटी, इट्स अ रियलिटी चेक। अब बात आती है सबसे मेजर कंसर्न जो रहता है होम स्कूलिंग में, कि हम वर्किंग पेरेंट्स हैं, एंड वर्किंग पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम एक स्ट्रक्चर कैसे बनाएं कि उसमें सबसे पहले relax and ease down is the first step of homeschooling. You don't have to worry, you don't have to talk about things, you don't have to think कि यार आज उसने ये सीखा कि नहीं, आज मैं क्या सिखाऊंगा। यू नो सबसे पहले अपना एक स्ट्रक्चर बनाओ कि अगर आपके पास, आप वर्किंग हो, आप दोनों, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोथ आर वर्किंग, मोस्ट ऑफ टाइम वन इज वर्किंग, मोस्ट ऑफ टाइम बोथ आर वर्किंग, बट दे हैव अ डिफरेंट टाइम जोन, बिकॉज ऐसे ही हम लोग, वी आर पेरेंट्स, वी शिफ्ट इट लाइक कि आज रात को ये जगेगा, फिर सुबह को वो जाएगा, फिर ये करेगा, वी डू लाइक दिस, राइट। ऐसे ही होम स्कूलिंग में होता है। हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टू स्टार्ट विथ एक 30 मिनट्स का एक विंडो अपना निकाल लो, कि इस विंडो में ना मैं बिल्कुल भी, इट्स नॉट अबाउट स्क्रीन, इट्स नॉट अबाउट मोबाइल, इट्स अबाउट इन्वॉल्वमेंट। लोग कहते हैं कि हम लोग ना, वी हैड अ क्वालिटी टाइम, हम लोग साथ में मूवी देखते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली व्हाट आई फील, मूवी देखना इज नेवर अ लर्निंग और नेवर अ इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज जब हम मूवी देखते हैं ना, तो हम भी मूवी में इन्वॉल्व रहते हैं। किड्स आर ऑल्सो इन मूवी। हमको अच्छी लगती है तो हम उसको देखते रहते हैं, किड्स को नहीं अच्छी लगती तो उस वक्त पे बोर होते हैं या इधर उधर चले जाते हैं, एंड वी थिंक कि हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। नो, इट इज़ नेवर एवर अ टाइम स्पेंड थिंग। वट आई पर्सनली फील, इट मे वेरी, इट मे हैव अ डिफरेंट थिंग्स, बट ये मैंने सोचा, और एनएलपी ऑल्सो सेज कि जब भी हम बच्चे के साथ कुछ ऐसा करते हैं ना जिसमें हम भी फिजिकली इन्वॉल्व हैं, एंड आवर इंटरेस्ट इज मीटिंग, लाइक हम किसी गेम जोन में चले गए और वहां पे हम लोग ने साथ में कुछ किया, दैट इज समथिंग आई कॉल इट इन्वॉल्वमेंट। और सबसे बेटर इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपको बता दूं, यू नो गो आउट ऑन अ वॉक। सिंपल, एक वॉक पे चले जाओ, किसी गार्डन में चले जाओ, एंड हैंड इन हैंड, देन दैट्स द क्वालिटी टाइम व्हाट आई से। और वो 3 घंटे की मूवी से 3 मिनट की वॉक विल ब्रिंग दैट, when you have hand, you have a warmth, you give them the skin touch and everything, and this all really matters, दिस ऑल रियली मैटर्स। हम क्या करेंगे उस 30 मिनट में, वो बात की बात है। सबसे पहले अगर वो 30 मिनट आपने एक रूटीन में सेट कर लिया कि हम ऐसा कर सकते हैं, भले वो वीकेंड्स पे हो। हम वर्किंग पेरेंट्स की अगर बात कर रहे थे, तो एवरी डे एक रूटीन बनाए, एवरी नाइट एक रूटीन बनाए, जब 15-20 मिनट हम उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, एंड देन कम्स द वीकेंड, जहाँ पे हम 1 घंटे या 2 घंटे के माइक्रो लर्निंग सेशंस बना सकते हैं। हम आउटसोर्स कर सकते हैं और वहाँ पे उनके साथ जा सकते हैं कि यार तुम ऐसा ऐसा सीखो। सो दिस इज हाउ पेरेंटिंग वर्क, एंड दिस इज हाउ आई डिड। ओके, सो ये एक स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है हमेशा कि इज होम स्कूलिंग रियली एक्सपेंसिव, या लोग बोलते हैं यार हमारे पास ना, जैसे मैंने मैं वापस आया, सो आई वॉज हैविंग सम सेविंग्स, एंड आई वॉज हैविंग, जब हम बाहर रहते हैं ना, तो हम फ्लैट्स देखते हैं, बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव फ्लैट्स रहते हैं, जिसकी हम ईएमआईज पे हम लाइफ निकाल देते हैं। कि कभी कभी हम जब पुणे में हैं, मुंबई में, आपको पता होगा, दिल्ली में है, बड़े बेंगलोर में है, 1-1 करोड़ के फ्लैट्स आते हैं, 80 लाख का 3 BHK। अब तो बात आगे हो चुकी है, जब मैं पुणे में था बैक इन 2012, तब 80 लाख का 3 BHK आता था, और सोचते थे और उसको खरीदते थे और हम खुश होते थे। जबकि हमारे पास, हमारे जो भी सिटीज़ हैं जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स थे, एंसेस्ट्रल होम्स थे, वहाँ पे चीज़ें अभी भी सस्ती थी, और उधर हम ईएमआईज देने को तैयार थे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ खरीदने के लिए ईएमआईज देने को तैयार नहीं रहते हैं। पर यहाँ पे सस्ते में भी चीज़ें मिल जाती, तो मेरे को चीज़ें यहाँ पे मिली, और मैंने जब कुछ चीज़ें डेवलप की अपने बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स मेरे को बहुत बार रिप्लाई करते हैं। यूजुअली आई डोंट रिप्लाई टू सो मेनी कमेंट्स, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू सम डिस्कशन, जो कि इट इज़ नॉट लैंडिंग ऑन टू समवेयर वेयर वी वांट टू, एंड समवेयर लीविंग अ वॉर, लिविंग अ बैटल,
इज ऑलवेज ऑलवेज विनिंग अ बैटल विच यू डोंट वांट टू फाइट. ओके, सो मैं फिर भी उनको बोलता हूँ, लोग बोलते हैं यार आपके पास ये पैसा है ना, आप ये सब करो, हम हमारे बच्चों के लिए नहीं कर सकते. सी वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर फिलिंग द फीस, यू आर हैविंग बसेस, यू आर हैविंग ट्यूशंस, यू आर हैविंग यूनिफॉर्म्स, आपके पास बहुत सारा खर्चा ऑलरेडी रहता है. उसी खर्चे को हम कैसे होम स्कूलिंग में इंटेंट बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, हम ये नहीं कह रहे कि होम स्कूलिंग लो कॉस्ट है, बट होम स्कूलिंग इज मैनेजेबल. होम स्कूलिंग कैसे मैनेजेबल है कि हम हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन से कैसे उसको राउट कर सकते हैं, कैसे उसको आगे लेके जा सकते हैं, कैसे उसको वैल्यू बेस्ड बना सकते हैं. यू नो ब्रिंग न्यू बुक्स, bringing so many activity kits, bringing something, कुछ गेम्स रहते हैं, ये वाली चीज़ें भी हैं. बिकॉज एक 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 चीज़ आई थी दिमाग में, बट आई कीप इट फॉर लेटर. सो दिस इज़ वेयर होम स्कूलिंग इज़ नेवर एक्सपेंसिव, एंड अगेन आई नेवर से इट इज़ लो कॉस्ट, बट येस इट इज़ वैल्यू बेस्ड, इट इज़ इंटेंट बेस्ड. So for me, I never think that it is very expensive. Coming to the legal clarity, this is very much needed when people will talk, people will ask you, people will claim you, people will tell you कि अरे ऐसा कैसे, जो बाकी कर रहे हैं वो क्या पागल हैं. सो मैं बता रहा हूँ कि आरटी, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन ने ये बोल के रखा है कि हर बच्चे को एक राइट है एजुकेशन के लिए. ओके, फिर एनईपी आया, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उनने और इजी कर दिया जो पहले रहता था. मतलब हमारी पॉलिसीज बहुत इजी हैं, लेकिन हमको उस पर रिसर्च करना है. गवर्नमेंट इज नेवर फूलिंग अस. ओके, नो गवर्नमेंट फूल्स, बिकॉज गवर्नमेंट को सस्टेन करना पड़ता है. आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम the current government or which party or what, that's a political debate, I don't want to bring it here. But what I'm telling you, no government always gives a path which is for everyone. इट नेवर चूजेज अ पाथ जो कि किसी इंडिविजुअल के लिए रहेगा. बट हमको क्योंकि हमारी रिसर्च नहीं रहती है, तो हम सिर्फ स्कूल्स पे रिलाई करते हैं टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन टू अस, कि पहले क्या किया उन्होंने. नर्सरी क्यों आया था, नर्सरी का वर्ड जो है ना, इट्स फॉर नर्सिंग. किंडर गार्डन एलकेजी यूकेजी था कि बच्चों को धीरे धीरे एकेडमिक्स सिखाया जाएगा. बट वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चे जब एंटर कर रहे थे स्कूल्स, तब प्रॉब्लम आ रही थी कि 6 साल में ना बच्चा एकदम से कैसे आ जाएगा स्कूल में, वो थोड़ा सा सोशली एक्टिव या फर्स्ट ग्रेड में कैसे आ जाएगा, तो थोड़ा सा उसको कैसे बैठना है नए लोगों के साथ. तो उसलिए आया किंडरगार्टन. किंडरगार्टन आया जहाँ पे धीरे धीरे सिखाएंगे. किंडरगार्टन में भी प्रॉब्लम आ रही थी, फिर आया था नर्सिंग. नर्सिंग में बच्चा सिर्फ स्कूल जाना था, वहाँ पे उसको बैठाना था, उसको कोई केयर गिवर रहेगा जहाँ पे पेरेंट्स भी रहेंगे कभी मोस्ट ऑफ टाइम के लिए, और धीरे धीरे वो ट्रांजिशन शिफ्ट होगा. बट नर्सरी में भी वापस से आ गया ABCD, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, करिकुलम आ गया, सो मेनी थिंग्स. फिर वापस क्या आया, प्ले ग्रुप, प्री स्कूल्स, नर्सरी से भी पहले. उसमें भी उनने सोचा था कि वही कराएंगे कि बच्चे को धीरे धीरे, हमारा बच्चा तो खेलता है. नहीं खेलता. आपके बच्चे को जब एनवायरनमेंट चाहिए कि चार दीवार से बाहर, उस वक्त पे आपने उसको भेज दिया एक बंद क्लासरूम में. ओके, वहां पे चलो आपने बोला हमने एक गार्डन में भेज दिया, वहां पे एक ओपन स्कूल है, बट स्टिल, स्टिल योर किड व्हेन ही इज नॉट कंफर्टेबल, वो अपने चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, घर पे दादी लोग पे भी पास जाने में, बच्चा 2-3 साल का अभी डर रहा है कि नहीं, मेरे को मेरी माँ के साथ या मेरे पेरेंट्स के साथ ही सोना है, मेरे को उनके साथ ही रहना है, अभी आई एम नॉट कंफर्टेबल. बट हम सोचते हैं, हमें सोसाइटी क्या बोलती है ना, अभी नहीं जाएगा तो सोशल कैसे होगा, बाद में परेशान करेगा. नो, दैट इज नॉट द राइट वे. द राइट वे इज, लेट योर किड बी लिटिल कंफर्टेबल. वंस ही गेट लिटिल कंफर्टेबल, भले वो 3 साल में हो रहा है, किसी का बच्चा 4 में हो रहा है, किसी का 5 में हो रहा है, जब वो कंफर्टेबल हो जाता है ना, तो उसका ब्रेन कंप्लीट डेवलप हो जाता है. ब्रेन कंप्लीट डेवलप हो जाता है, फिर वो चीज़ें आपको लग रहा है कि 3 साल में ही ए बनाना सीख जाएगा, तो क्या वो नासा पे जाएगा? नो, नेवर. अगर 3 साल में बच्चे ने जिसके सीख लिया ABCD बहुत अच्छी हैंड राइटिंग से, क्या आपको लग रहा है कि वो जो आपको अचीव करवाना था वो कर लेगा? नो, यू कैन नॉट गारंटी. बट येस, अगर 6 साल तक उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो गया, जो एक एज है, जो मैं नहीं कहता हूँ, इट न्यूरल साइंस, एवरी स्टडी, कैम्ब्रिज की स्टडी, हर जगह की, ऑक्सफोर्ड की, हर जगह की स्टडी यही बोलती है कि 6 साल तक बच्चों को एक्सप्लोर करने दो. देर शुड बी नो स्ट्रक्चर बेस्ड थिंग. And that's what our policies are also saying. There should be no structured thing. That's why they introduce neos also. That's why they introduce, they are never saying, they are never banning homeschooling. अगर हमारी गवर्नमेंट या लीगल क्लैरिटी में कुछ पंगा होता तो वो होम स्कूलिंग को बैन कर चुके होते. नहीं किया है किसी ने भी. बट हमको क्या हो जाता है ना, हम सोसाइटी में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वी 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 फॉल इनटू अ ट्रैप जहाँ पे हम एक अननेसेसरी क्वेश्चंस के जोन में चले जाते हैं. सो you do a deep research,
you keep on touching me on this, I'll give you more legal clarity, but this is where, I always say कि जितना आप खुद रिसर्च करोगे ना, to the real, registered websites, then you get the clear, clarity if you really want to do this. हम हमेशा बात करते हैं, 10th 12th का क्या होगा, हम हमेशा बात करते हैं, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डोंट टेक, मेरे घर पे भी बच्चे हैं जिनका भी 12th है, वो ये बोर्ड 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 बोर्ड, दे हैव मेड बोर्ड एज देयर लाइफ. इट इज नॉट. इट इज जस्ट अ सिंपल माइलस्टोन, आप ट्रस्ट, जो भी आप खुद, मतलब यू विल बी वर्किंग समवेयर. डिड एनीवन टॉक अबाउट योर 10th and 12th? No. The pressure, the trauma you underwent, इट्स नेक्स्ट लेवल. एंड बिकॉज ऑफ विच, बहुत लोगों को 10th में कुछ और भी करना था, बहुत लोगों को 12th में कुछ और भी करना था, बट हमेशा हम लोग यही सुनते रहते थे हमारे पीयर्स से, या जिनने हमें डिसिप्लिन किया है, जिनने भी हमें सिखाया, जो जिनको हम इंस्पायर्ड थे जिनसे, वो ये कहते थे पहले बोर्ड हो जाने दो, फिर बाकी कर लेना, बाकी सब आसान रहेगा. कभी कुछ चीज़ें आसान नहीं हुई, और टफ होती गई, और टफ होती जाएंगी. लाइफ इज अनसर्टेन. सो द ओनली थिंग विच इज सिंपल इज टुडे. Today is simple, tomorrow is uncertain. So you cannot talk about uncertain things saying that they will be simple if you go from today. No. So that's what my mentality is. Again, you have so many things. You have NEOS available. NEOS में कैसे जाना है अभी नहीं सोचना है. अगर आपका बच्चा अभी 15 years का नहीं है, he is not eligible for 10th, why are you thinking about NEOS right now? Why do you want to even know about it? If you want to know about it, what I want to do in next 3 months or this next year, so that I can see the change in my kid. Will he be capable? Will I be capable? Will I be efficient enough to do this? Should be your questions, should be your, purpose for them, for their childhood and your parenthood. Because parenthood, I must tell you, parenthood, people think they'll be parent forever. पेरेंटिंग हमेशा नहीं. आपके भी पेरेंट्स हैं, पर आप उनसे बिना पूछे आज बहुत कुछ कर रहे हो, बिकॉज नाउ यू आर इंडिपेंडेंट. सेम इज विथ योर किड. द पेरेंटहुड मैक्सिमम, इज टिल 8 to 12 years. 12 साल तक के बच्चे को आप पेरेंटिंग पेरेंटिंग पेरेंटिंग, जब उसके बाद वो खुद बताने लगता है बच्चा कि मुझे ये करना है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, देन यू आर देयर टू गिव डायरेक्शन एंड सपोर्ट. अगर आप वो नहीं करते हो तो दे बिकम रिबेलियन और यू बिकम रिबेलियन. सो दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर. व्हाई यू थिंक अबाउट समथिंग which is right now uncertain. Okay. So let's talk what is happening, how Indian families are doing, how I started doing it. Okay. So I started doing with 3 day schooling, 4 day प्रॉपर स्ट्रक्चर, बिकॉज बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी घर वालों को समझाने में, रिलेटिव्स को समझाने में, क्योंकि आई वॉज इन टू दैट ट्रैप. ओके. सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, वेयर I enrolled him to some sport academies, I enrolled him to calisthenics, I enrolled him to you know so many other things, जिसमें वो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ बन गया, सब कुछ सीख गया, पर मुझे ये पता चल गया कि क्या क्या उसके लिए वर्क कर रहा है. बिकॉज when they are into school, और वहां पे क्रिकेट सीख रहा है या वहां पे फुटबॉल सीख रहा है, एक ही टीचर है, एक ही कोच है जो कि उसको सारी चीज़ें सिखा रहा है. आज उसने ये सिखाया, बट व्हेन यू सेंड देम टू द अकेडमीज आउटसाइड वेयर द स्पेशलिस्ट कोचेज आर देयर ना, वहाँ पे वो इंस्पायर होते हैं उनसे, क्योंकि वहाँ पे उनकी रियल ट्रेनिंग होती है. वहाँ पे वो क्या गलत कर रहे हैं वो सीखते हैं, क्या सही कर रहे हैं वो सीखते हैं. बट हम 12th तक इस चीज़ में नहीं रोक सकते हैं कि कैसे होगा, कि 12th के बाद देखेंगे, फिर तो उनका चाइल्डहुड खत्म हो चुका है, फिर कुछ देखने के लिए एक्चुअली बचता नहीं है. फिर यही रहता है कि देर आर फ्यू ऑप्शंस विच दे हैव टू टेक इन. और फिर आगे जाके वो बच्चा जब खुद रिस्पॉन्सिबल होता है ना, हमेशा सोचता रहता है कि यार ये भी कर लेता. सो अवर टाइम इज डिफरेंट. सो दिस इज वेयर सम पेरेंट्स टेक हाइब्रिड. जो पेरेंट्स दे आर इमोशनली कनेक्टेड वेल, दे कैन डू इट, दे थिंक कि हाँ हो जाएगा, वहाँ पे आता है फुल होम स्कूल, जहाँ पे दे हैव देयर कमिटमेंट, दे हैव देयर कंट्रोल मॉडल, दे हैव थिंग्स डिजाइन, दे हैव एनरोल्ड टू सम होम स्कूलिंग कम्युनिटीज, जहाँ पे उनको करिकुलम्स आ जाते हैं, जहाँ पे अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट ट्रेंड कहाँ मूव हो रहा है. ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं विच वी विल टॉक अबाउट. एंड देन थिंग्स हैपन, एंड दिस इज वेयर I want myself to head into, and I'm just planning to head into it this year. So I'm lucky and happy enough that I'm moving. कुछ लोग सोचते हैं कि क्या ये रिवर्सिबल है कि नहीं, तो इट इज़ कंप्लीटली रिवर्सिबल. क्वेश्चन आता है कौन से हमारे स्कूल से लेते नहीं ऐसी, आपको कहाँ से क्या लेना है, आप कौन से स्कूल की बात कर रहे हो. हमेशा हम सोचते हैं कि ना, उनका बच्चा वहाँ गया है जो भले हमसे 3 घंटे या 2 घंटे दूर है या 1 घंटा दूर है, वो स्कूल दूरी पे, वहाँ पे भेजूंगी, वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, सोशल सर्कल बनेगा. ये नो. You always, when you talk about your kids education, you always think about yourself. That's a hidden truth and must agree. तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स रहते हैं
जहाँ पे आप एज स्पेसिफिक, वो कैसे होता है, क्या होता है, आई विल टेल यू पर्सनली। इन कम्युनिटीज ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट इट कि कैसे लॉग्स मेंटेन करने हैं। जब जो फुली होम स्कूल्ड फैमिलीज रहती हैं, वो दे हैव द वीडियोस, दे हैव द लॉग्स, दे हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप अपने बच्चों को कोई एक्टिविटी करा रहे हो और उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा नहीं कि रजिस्टर्ड या गैजेटेड या साइंड हो, पर यस यू मेंटेन अ रजिस्टर, यू मेंटेन कॉपीज, यू मेंटेन द वर्कशीट्स जिस पे आपने वो काम किया, यू मेंटेन द एक्टिविटीज जिसके आपने वीडियोस बनाए हैं। दोज आर ऑल लॉग्स which you maintain, which is not talking about the legal aspect, but I'm talking about जहाँ पे ये चीज़ें आती हैं कि हाँ, ये लॉग्स हैं जिसके बेस पे बताया जा सकता है कि हमारा बच्चा होम स्कूल्ड है। और फिर schools take your kids, जहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं, दे टेक बैक, यू नो सो दिस हैपेंस। अब बात आती है सोशलाइजेशन की, जो सबसे बड़ा फियर है कि मेरा बच्चा अगर स्कूल नहीं जाएगा सो सोशल कैसे होगा। सो वी आर ऑन 155। ओके, आई ट्राई टू but I don't want to compromise this session, so let's see कि कहाँ तक कैसे खींचता है, and then definitely I'll be waiting for the Q&A session, don't worry. ओके, सो सोशलाइजेशन, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो सोशल कैसे होगा। बट जिस सोशलाइजेशन की आप बात कर रहे हो, आप सोशलाइजेशन सोचते हो कि बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ पे वो चार 40 बच्चों की क्लास है, वहाँ पे वो सोशल हो रहा है। वो बिल्कुल सोशल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे, दो टाइप के बच्चे होते हैं क्लास में, बता रहा हूँ, और दोनों ही अच्छे होते हैं। कि एक रहता है जो रैंक होल्डर्स, जिसको हम बता देते हैं शुरुआत से, नर्सरी फर्स्ट ग्रेड से ही बता दिया जाता है कि ये बच्चे जो हमारी क्लास में जिनका बोर्ड पे नाम लिखा जाता है, दो ज़्यादा टॉपर्स। और फिर कुछ बच्चे हो जाते हैं बैक बेंचर्स। ओके, देन बात आती है सोशलाइजेशन की। हमेशा जब उनको क्लास में सिलेबस कंप्लीट होने की बात हो रही है, 40 बच्चों के अलावा उनको कभी इंटरेक्ट करते नहीं मिलता है। बट वेन दे वॉन्ट टू स्पीक समथिंग, दे आर पनिश्ड, दे आर बीइंग सेड कि अभी चुप रहो, कीप क्वाइट, लेट मी कंप्लीट दिस। फिर गेम्स पीरियड आता है जहाँ पे थोड़ा बहुत सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन कैसा कि टीम बना दी जाती है, कोई टीचर रहता है वहाँ पे जो कि टीम बना देगा, वो खेलेंगे एक टीम में, जो अपोजिट टीम में है, कभी कुछ हुआ। एंड दिस इज वॉट यू ऑलवेज से द ऑथोराइज्ड वे, जिसमें हम कहते हैं सोशलाइजेशन है। नेवर, इट इज नॉट सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज समथिंग जहाँ पे आप बाहर, जब आप देखना, आप जब आप बच्चे को कभी भी किसी एकेडमी में भेजते हो, या जब भी आप सोसाइटी में जो बच्चे खेल रहे हैं आपस में, दे आर सोशल, दे आर हैविंग देयर ओन टाइम, जहाँ पे वो अपने एज ग्रुप से ज़्यादा वाले लोगों से भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं, ढंग से हो पा रहा है। उसको हम सोशल नहीं कहेंगे। जहाँ पे यू नो एक एक डाइवर्सिटी ही नहीं है, दैट इज नेवर अ सोशलाइजेशन। विल टॉक अबाउट व्हाट रियली सोशलाइजेशन इज एंड व्हाट इट लुक्स लाइक। अगेन, सेकंड इज डिसिप्लिन। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो डिसिप्लिन कैसे होगा, क्योंकि वहां पे ही तो उनको दो थप्पड़ गलते हैं या उनको पनिशमेंट मिलती है, वहां पे ही तो उनको समझ में आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, द डिसिप्लिन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे उनके ऊपर अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी या मार मिलेगी, और उसकी वजह से वो एक रिदम फॉलो करते हैं, सो दैट इज़ नॉट डिसिप्लिन, दैट इज़ अ कंप्लाइंस थिंग। कंप्लाइंस क्यों सिखाया गया? कि आप बाद में जब किसी कंपनी में काम करोगे या बाद में जब आगे जाओगे, तो आपको ऊपर वाले की सुननी है, आपको ऊपर वाले के तरीके से चलना है। ये सिखाना था उनको। दैट वाज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो होता है कि बच्चा खुद सुबह अगर उठ रहा है, और अगर वो किसी क्रिकेट एकेडमी में जा रहा है, या अगर वो किसी एआई की कोचिंग जा रहा है, और वो खुद अपने टाइम पे वहाँ जाएगा, वहाँ से आएगा, और उसको कुछ फैक्ट है या उसको कुछ चीज़ क्लियर करनी है, तो वो खोलेगा गूगल या वो खोलेगा इंटरनेट, वो सर्फ करेगा और चेक करेगा। क्रिकेट से वापस आया है तो वो घर पे बॉल टांग लेगा और उस पे मार के प्रैक्टिस करेगा। दैट इज डिसिप्लिन। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, दैट टाइम, there was one teacher who I really was inspired, and he taught me one thing, कि जो तुम लोग मेरे को देख के अपनी टाई अच्छे से फिक्स कर लेते हो, और जैसे ही तुम लोग यहाँ से कॉलेज से निकलते हो सब टाई ऐसे, और बिल्कुल यूनिफॉर्म को तुम लोग कचरा बना देते हो। तो जो जो बच्चे थे ना, जो बच्चे तब भी मतलब डिसिप्लिन थे, वो वैसे ही जाते। सो डिसिप्लिन इज नॉट व्हेन यू आर बीइंग मॉनिटर्ड, डिसिप्लिन इज समथिंग व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स इन अ सेम वे, इन अ परफेक्ट रिदम, विदाउट बीइंग मॉनिटर्ड। और स्कूल का जो डिसिप्लिन है ना, आई थिंक इट इज प्रेशर, इट इज एंजाइटी। सो आई पर्सनली डोंट फील। तो जो आपका फियर था डिसिप्लिन का कि स्कूल में नहीं जाएगा तो डिसिप्लिन कैसे, आई टेक इट एज एंजाइटी, आई टेक इट एज अ प्रेशर, आई टेक इट एज अ कंप्लाइंस, नॉट डिसिप्लिन। ओके, मुझे पर्सनली जब मैं होम स्कूलिंग करना शुरू किया तो कौन सी चीज़ों ने परेशान कर दिया? मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया मेरी फैमिली ने। क्योंकि मेरी फैमिली ये बोलती थी कि ये जो कर रहे हो सही है कि नहीं। और मैं हमेशा उनको एक्सप्लेन करने में घंटों बिता देता था, क्योंकि मैं जितना उस चीज़ में घुसता था, उससे ज़्यादा मैं सोचने लगा था कि मैं इनको कैसे समझाऊं। मैं उनको जा जाके रिसर्च पढ़वाने लगता था कि ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है।
और सबसे ज़्यादा ये मुझे मेरी वाइफ को समझाना पड़ा, एंड उसको समझाता भी इसलिए था बिकॉज सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट की भी उसी की ज़रूरत थी। बिकॉज वेन यू बिकम अ पेरेंट यू आर नो मोर कि father is important or mother is important. It is like, parenting is important. So I needed her support. I get her support. So this is where मैं उनको समझाते समझाते, और क्योंकि वो चार्टेड अकाउंटेंट है, सो शी केम फ्रॉम सच ए स्टडी जहाँ पे उनने कोई कॉलेज भी नहीं देखा, जहाँ पे उनने यू नो क्या कैसे होता है, वो चार्टेड अकाउंटेंट्स कम फ्रॉम अ डिफरेंट जोन। सो मेरे लिए और टफ हो गया, बट यस, मैं उनको धीरे 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 करके समझाया। बट मैंने समझाना धीरे धीरे कम कर दिया। मैंने क्या करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्ट्रक्चर। आई स्टार्टेड वर्किंग, जो मुझे धीरे धीरे उन्होंने बोला था ना कि 3 days विल बी माइन, 4 days विल बी योर्स। मेरे दिनों पे वो वही करेगा जो कन्वेंशनल सिस्टम कह रहा है, आपके 4 दिनों पे वो कर सकता है जो आप चाहते हो। एंड देयर आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन माई 4 days। वो 4 days में मस्ती होती थी, वो 4 days में बहुत कम पढ़ाई होती थी, वो 4 days में एक्चुअल रिजल्ट ओरिएंटेड, एंड स्लोली आर इट started being happy. Slowly he started being smart. Slowly people started saying कि यार तुम्हारा लड़का तो बड़ा स्मार्ट हो गया। एंड दैट्स वेयर शी सॉ कि हाँ यार, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हमारे लिए भी ईज हो रहा है, हमको भी सही लग रहा है, एंड दिस इज़ वेयर वी शुड बी हेडिंग। और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरे को आप लोगों का। आप लोगों का क्यों? क्योंकि not just from India, across the globe, people started asking me, can you provide me some help? Can you provide me some teaching? Can you provide me some education over homeschooling? How can we do it? So I did. I made some tools जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। एंड दैट्स वेयर आपको भी क्या करना है कि नहीं, हमको ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। जब हम होम स्कूलिंग करते हैं तो हम मिस्टेक क्या करते हैं? हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि हम हमेशा एक ही चीज़ सोचते रहते हैं कि आज मेरे बच्चे ने सीखा क्या, आज का आउटपुट क्या रहा, आज मैं यू नो लोगों को क्या बताऊंगा कि क्या प्रूफ है कि मैंने इसको ये सिखा दिया। वाई? वाई डू यू वांट दैट? बिकॉज हमारा सिस्टम जहाँ से हम निकाल रहे हैं ना, वो हमको ये देता है। हमारा सिस्टम क्या देता है कि आज हमने क्लास में टेस्ट लिया था तो 20 में से इसको 15 मिले, इसको 20 मिले, उसको इतने मिले। हमारा सिस्टम हमको बताता है कि ये एक सर्टिफिकेट है, जिसमें ना वो एक कंपटीशन हुआ था, स्पीच कंपटीशन, जिसमें ना इसने पार्ट लिया, बाकी लोगों ने पार्ट लिया, इतनों को सर्टिफिकेट मिला, वो एक Hey ग्रुप में Rajesh, शेयर हुए। Rajesh, I'm sorry, I'm gonna have to interrupt you a bit. सॉरी। यस। Yeah, you were going to walk us through certain specific things. अभी आप जो बता रहे हो, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हो, आप पेरेंटिंग टिप्स बता रहे हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बता रहे हो. I was looking forward to, and I think a lot of us would have been looking forward to very So specific you can homeschooling. put out in the Q&A. Don't worry, I'll be completing because this session is such a designed for everyone. So we are No, no, looking but from this is still everyone's 2:30. aspect, अभी and 2 o'clock से ऊपर हो गया. We haven't gotten to the agenda. So my concern is then what portion of this session is the agenda, and what portion is your personal stories or your anecdotes or your experiences. so I'll क्योंकि I'll cover specific. that thing. Don't worry, I'll cover if still something is left, for you, I'll cover that thing in Q&A. All right. Okay. All Thanks. right? So thank you. All right. Cool. So let's move कि कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। एंड इफ यू थिंक दैट दिस इज, आई मीन, नॉट टू टेल anyone here about personal things. I'm not discussing the personal thing. I'm just discussing about what happens in homeschooling really, and where we fall into a trap, and we fall into a trap where हमने हमेशा चीज़ों को वापस से वही एक सिस्टम, वही एक स्ट्रक्चर ला के रख दिया। बट वी नीड टू कस्टमाइज, वी नीड टू कम आउट ऑफ द मार्क्स मेंटेलिटी, वी नीड टू कम आउट ऑफ द प्रूफ मेंटेलिटी। वी हैव टू गो इन टू द स्किल सेट मेंटेलिटी वेयर वील टेल कि हमने आज इसको क्या स्किल सिखाई, और वो स्लोली 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 दे कम इन टू द पिक्चर। Okay, so real world, how I took the homeschooling to the next level and how people are doing across the world. We see that our kids are having, they're learning 2 plus 2, they are learning 2 into 2, they are learning, chemistry, they are learning everything, but they don't know ki what is the real use of things and where do they use. So a kid, if a kid of 7 years or 8 years of age, if you are going to a restaurant and if he is able to do the budgeting where you can assign him a task that we 4 people are there, we have 1,000 rupees, and we have to make the meal done, and we have to pay, we have to give the tip, we need to do, and he's doing budgeting, he's ordering for us, and he's looking into the menu card, and that's where the budgeting, that's where the real maths come in. And this, if a 8-year kid is doing, or if this a 8-year kid is attaining 95%, 95 marks in maths, and
So many things he's doing, but he's not able to do this. Then there comes a shift. So real world learning is always, more than what actually is happening in the system. So, you know, he's going to rope climbings, he's learning sewing, he's learning, chula making, he's doing vlogging, he's going to the, whenever we are going to temple, and he is interviewing people there. So he is attaining real world examples, real world skills, which actually the AI is not gonna, overtake in future. Okay. About the resistance thing. Okay. So we are also, grown up adults. Sometimes, what was happening when we take that kid into a zone where, he is learning something, or we are giving him something. Today we have a structure and, ready, and we have a class ready. And when he's saying कि आज मुझे नहीं पढ़ना है, या आज मेरा मूड नहीं है, या फिर ही इज शोइंग टैंट्रम्स, at that time we just feel the second layer, we doubt. The second layer of homeschooling was doubting. We doubt कि स्कूल में तो ये सब कर लेता है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, यार वो बहुत लेजी है, वो ऐसा है। बट हम जब काम पे जाते हैं, कभी कभी हमारा मूड होता है कि यार मुझे ना आज किसी से बात नहीं करनी। हम जब काम पे जाते हैं, हमारा ऐसा रहता है कि यार आज ना काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है, सो व्हाई नॉट विद अ किड हु इज स्टिल ग्रोइंग? सो दोज things need to be understand. We don't have to compare anything with discipline. We don't have to compare anything with uh, school structure. And that's where homeschooling plays a bigger role, that कि यहाँ पे बच्चे को वो जोन है वेयर ही इज हैविंग अ चाइल्डहुड, ही इज given a space, he is given a space to learn. And then if you are walking out of that doubt wala zone, doubt wala layer, there see your kid bounces up tomorrow, and you make wonders, the skill is being learned. So just think, हो सकता है टाइम गलत है, हो सकता है उसकी एनर्जी लो हो, या फिर हो सकता है उसके इमोशंस अभी राइट नाउ दे आर नॉट गुड। Okay, so my current stand again, but you'd be doing less on this. That yes, this year we will be moving out of the zone where 3 day, 4 day zone. We'll be completely going into a homeschooling zone, and from there we'll be taking a flight to unschooling zone. And we did this gradually. So the transition was smooth because now that emotional shift is good. Not concerned about academics more. Okay. So what actually, homeschooling is? Homeschooling is actually not freedom. It is not really, people think कि हमने स्कूल से निकाल दिया तो सब easy हो गया, flexible हो गया. It is governance. It is freedom with responsibility, more maturity, more intent. And same is what, I always say people that homeschooling is nothing जिस पे सब चलना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए, या सब चल सकते हैं. You think of yourself, क्या क्लैरिटी चाहिए, कैसी क्लैरिटी चाहिए, उस क्लैरिटी को लेने के बाद क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या हमें ये ट्राई देना चाहिए. सो दैट्स वेयर कम्स अ बिगर रोल. You opt homeschooling, but nothing changes. Same routine, same pressure, same expectations, same outcomes. It will not work for you. It will always land into a regret which is always giving you self doubt, and then makes you feel more fatigue, and then coming out of homeschooling and reversing your decision, and then again doing same things again and again. So before you again decide, it was, today's session was more about clarity. It was never about taking an emotional decision कि आज इसके बाद मेरे को होम स्कूलिंग ही करवानी है. It was not about things. It was again when someone said कि it's more about parenting, it's more about this. So it's actually about making a good human being. It's actually about make you know making him an adult. What you are looking for him in future, उसके लिए हम आज जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ आज हो रहा है, इज इट फुली जस्टिफाइंग दैट, इज ही गोइंग टू बी दैट? So this is what matters. Cool. So let's come on to the homeschooling thing, and how may I help you? So sir, first question I would what was the thing which you thought that you want to be covered, and where I can help you, we can help you. I think you are speaking on mute. Can you hear me? Yeah. Hey, hi, good name please.
Anant, Anant. Hi, Anant. hey. So, well, first of all, I was hoping to understand, what is it that you've done? You're conducting this session, so maybe you can tell us a little about what you've Can you please be a little accomplished. louder? I mean, your voice is a bit shaky. I don't know, like, is this for me, for everyone? Can you be a little louder, Anant? Sure, sure. Yeah, Is this working please. better? Yeah, it's better. Okay. So, I mean, before we proceed, could you maybe spend some time telling us a bit about what your experience in counseling others for homeschooling is? Like, so far, it seems like you're conducting the session as someone who's just done homeschooling for their kids, but have you solved homeschooling problems for others as well? Have you given them guidance on, how they would Hmm. be able to proceed? Secondly, based on that experience, how do you think we should go about with boards exams? I know you just said that don't worry about it. If you're not 14, why are you thinking about it? When you get a job, no one will ask you about boards. But from a True. process perspective, no one can get into a Yes. college in India if they've not gone through boards. And for Okay, someone cool. who's nearing that stage right now, especially if they Hmm. got into this session thinking that you will talk about that, it would be I'll talk nice if about you it. Yeah. spend some time, telling us a For bit sure. about that as well. For sure. For Thirdly, sure. thirdly, if you can just guide us on, some people, me included, we've been thinking about doing something out of the ordinary in terms of 10th boards as well. So instead of taking science, maths, English, Hindi, and social studies, we're thinking of taking something like, psychology, business studies, homeschooling, English, and computer operation going through NEOS. So I just wanted to know these subjects seem to be very practical and something which is very useful for a student. Hmm. So if we take Hmm. some subjects like these, which are a little distant from your typical math, science, English kind of subjects, does Hmm. the student end up facing some problem in college admissions later on if their 10th and Hmm. 12th subjects are along these lines? So yeah, if Okay. you could shed any light on this and Yep. and Yep. maybe Definitely. you can ask some others also if they have any questions, you can club them in, No, and then I'll we go can one take by it. one because I still have to see. I want to first, sorry Sure, to sure, say, fine, but क्योंकि तीन fine. क्वेश्चंस आपके जो थे पहले, लेट्स डू दैट एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि क्या ये सेशन जो था वो लाइक होम स्कूलिंग वाले पेरेंट्स को जो आप सेशन देते हो और जो लोग करना चाहते हैं ये उनका. सो मोस्टली इन दिस सेशन आई मस्ट टेल यू, मोस्टली एवरीबडी ऑफ देम इज who is like wanting to do homeschool. They are not from a zone they are doing already. Okay, so first is that. So आपका जो Okay, so first then question let था. me just clarify Yeah. that I have जी already जी. started homeschooling. Great. We spoke about this on chat also, and so maybe that's where the expectations were a little No, disconnected. that's perfectly fine, Anant. I mean, I would be more happy. See, our ultimate goal, we are all into a community. We are not fighting with any system. We are here to, clearly support each other. So I'm totally fine with that. Absolutely. So I would want that whatever things I can tell you, whatever things I can support you with, I'll be more happy to serve that. So I have answered for all your questions. So I'll do that here. Okay, thank you so much, Rajesh. Yeah. Thanks. So, okay. So your second question was, you said, actually it was a little bigger. So I'm getting. Can you summarize it in a line? Second question, so that I can recall it quickly. And So if you can just help us in terms of boards, yes. like So boards. I tell you NEOs when you would said be ki, huh, so National Institute of Open Schooling would yes, be probably the most appropriate option for us. this will, yes. Um, and then how does college education admission work after that? ओके. सो मैं आपको बताता हूँ, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ना, इट इज़ बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ इन इंडिया ऑल द यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट्स फ्रॉम दैट. ओके. So nobody denies that because it is a government organization. Government is on, they are only providing us that certificates. That is one thing. Okay. Okay, so that is one. And your third question was subjects के लिए. तो आपने उसमें ये भी बोला था कि क्या हम English होम स्कूलिंग और ये, मतलब होम स्कूलिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट. आई थिंक यू mistakenly said that, so I'm just No, no, correcting you. I said home science. Okay, home science, but I heard there homeschooling. Anyway, so yes, there we have an option to choose our subjects. Okay, and
इट इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे कि हमको वही सब्जेक्ट्स हमारे लिए चूज़ करने चाहिए। दैट्स वेयर स्कूल्स में भी अवेलेबल रहता है। व्हेन एनी स्कूल एज ए इंस्टीट्यूशन इज़ जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है या सब लोग, वो सब लोग भी नियोस से ही रजिस्टर्ड रहते हैं। ओके, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो सॉरी नियोस से रजिस्टर्ड कह रहा हूँ मैं, जो हमारी जो सेंट्रल बॉडी है जो एजुकेशन की, वहाँ पे जहाँ पे सारे स्कूल्स जो सारे बोर्ड्स हैं ना, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई है, कैम्ब्रिज है, सो मेनी बोर्ड्स आर देयर, वैसे ही नियोस भी वहाँ पे रजिस्टर्ड है। और सारे स्कूल्स जो हमें 5 सब्जेक्ट्स देते हैं ना, वो एक ट्रेडिशनल लर्निंग की वजह से, बिकॉज आई थिंक समवेयर कि या तो ये इसलिए करते हैं बिकॉज दे हैव टीचर्स फॉर दिस 5 सब्जेक्ट्स, और कोई नया सब्जेक्ट लाने के लिए उनको एक नया टीचर लाना पड़ेगा। बट वेन यू गो विथ नियोस, यू सिलेक्ट योर ओन सब्जेक्ट्स देयर, और उन्हीं सब्जेक्ट्स पे जो करिकुलम रहता है, करिकुलम इज ऑल्सो अवेलेबल देयर, और उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप लेके, इट्स लेस, इट इज नॉट मोर, you can go through that and you can have a passing certificate from there. You can choose any certificate, any the 5 subjects you want. Right. And so the question was actually leading on to college education. So if you go for a college education where you want to study psychology, Yes. and you've taken psychology in 10th also and 12th also through Mhm. NEOS, Mhm. but you've not taken your standard science, maths, and social That doesn't studies. matter because the cycle Okay. where you are, the college you are opting will not see कि आपके 12th में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे. They will ask for the gate pass. The gate pass is the mark sheet. The gate pass is the board certificate. So 12th board certificate you have that gate pass, you can enter. Got it. Got it. Yeah. That answers the biggest question of mine. Thank you. Oh, thank you. Thank And you. I'm more happy to, answer you. Uh, oh, 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 oh. Who else? Let's go one by one. Hello, hello, sir. I am Hey, audible. yes, you're audible, but again, your Yeah. voice, I think why it is little less. Sir, is Let me it figure okay out. now? Yes, it is okay. It is okay. It Yeah. is more better. Uh, Hello, sir. I am Shivam. I am from Mathura. Hey, Uh, Shivam. Sir, I have two questions. Sir, first question is, sir, since homeschooling is also a practical learning, and Mhm. and as per the boards like CBSE, ICSE, Cambridge, or IB. So what I know is from my relatives like the IB is practical learning, practical Mhm. based. So sir, Mhm. my first question is, so what is the difference between homeschooling versus IB? And my second question is, sir, sir, you talk about uniform output. So, sir, like when we just put our students in a school, so they go through like similar subjects like SST, science, maths. So, and today also, like the world is changing rapidly. So, no one teaches that AI agents or blockchain or artificial intelligence or no classes on technology. So what I was thinking, ki like instead of I teach my son or a daughter like these traditional subjects, what if I just teach them this new technology like blockchain or this? So would there be any impact like I mean because in 10th or 12th also there won't be any class. I mean no question paper on blockchain or this. The question paper would be only on this SST science. So would there be any issue future? I mean. Okay. Okay. So your first question was कि IB और होम स्कूलिंग में क्या डिफरेंस है, एंड सेकंड क्वेश्चन वाज कि अगर आप ये सब चीज़ें कराओगे तो इम्पैक्ट होगा कि नहीं, राइट? Mm-hmm. Right, right. इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा. Your kid will be more at ease in future. Your kid will be more happy in future. Your kid would be more reliable for the firms which want to give jobs to the people who know AI. Your kid will be more in demand, where blockchain would be needed because they know hands-on experience. Okay, so that is one. स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जा रहा है उसका मेरे ख्याल से, देखो, मैं ऑनेस्टली टू बी वेरी ब्लंट ऑन दिस पार्ट, कि कुछ चीज़ें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा तो हो सकता है वो कहीं और पंगा करें, बट आई डोंट वांट दैट. बट टू बी वेरी क्लियर, स्कूल्स मुझे लगता है कि सब्जेक्ट्स क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करते, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड दैट कोचेस, दे कैन नॉट अफोर्ड जो मार्केट में, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो मैथ्स की बहुत अच्छी क्लासेस चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस हैं. यू माइट हैव बीन नोन अबाउट दिस समीर जुपिटर. दिस ही इज अ बाल्ड गाय लाइक मी. सो इफ समबडी वुड बी नोइंग, वो बंदा मुझे क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज ही नोज द मैथ्स इन एंड आउट. ही नोज मैथ्स को अनस्ट्रक्चर्ड वे में कैसे पढ़ाया जा सकता है. ही नोज कि बच्चों को कैसे समझ में आएगी, और अगर मैथ्स ही पढ़ाना है, बट उनको ना स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे ख्याल से,
क्योंकि अगर अफोर्ड करना है तो ऑब्वियसली अगर आप भी कुछ बहुत अच्छे से यू नो दैट थिंग, जैसे हम आईपीएल ही देखते हैं तो आईपीएल में हर बंदा कोहली को नहीं खरीद सकता ना, हर बंदा दे कैन नॉट बिकॉज दे हैव देयर पॉकेट। सो दिस इज वेयर द फाइनेंस कम, द ये सारी चीज़ें आती हैं। बट इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, रेगुलर सब्जेक्ट्स, इसीलिए क्योंकि 8 9 10 तक वही सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, उनके टीचर्स अवेलेबल हैं और उनमें जो अच्छे हैं उनको वहाँ पे वही कंटिन्यू करके करवाया जाता है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई थिंक। कमिंग बैक टू द बोर्ड वाला थिंग कि बोर्ड में ये कैसे करवाया जाता है या बोर्ड दोनों कैसे डिफरेंट है। सी, होम स्कूलिंग इज नॉट अ बोर्ड, होम स्कूलिंग इज नॉट अ स्कूल, होम स्कूलिंग इज नॉट समथिंग कि वो इनसे कंपेयर किया जाए। आपको जो भी बोर्ड्स अच्छे लग रहे हैं, आपको जो भी बोर्ड, जैसे स्कूल्स में मैं वॉल्डॉर्फ को ज़्यादा यू नो तवज्जो देता हूँ, बिकॉज मोर इट इज़ मोर स्किल बेस्ड, इट इज़ मोर ओपन स्कूल। सो जहाँ पे वैसी चीज़ें हो रही हैं, और मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक, इफ़ यू गो फ्रॉम वेरी वेरी इजी थिंग्स, जहाँ पे आपके नज़दीक में क्या चीज़ है, जहाँ पे वो भले बहुत फेमस नहीं है, जहाँ पे वो आपको गवर्नेंस आपके हाथ में दे रहे हैं, अगर आप बोल रहे हो कि मैं 3 दिन वहाँ पे बच्चे को भेजूंगा एंड दे आर सेइंग ओके फॉर दैट, सो इट्स फाइन फॉर मी एंड आई लाइक दैट थिंग। सो आई एम मोर नॉट कंसर्न अबाउट द बोर्ड्स, आई एम मोर कंसर्न अबाउट वॉट टू बी टॉट। लाइक यू स्पोक अबाउट द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स में हमारा बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस, उनको एक्सपोजर किन किन चीज़ों का देना चाहिए या कैसे हम दे सकते हैं, is more important than selecting a board. Okay, sir. Yeah. Yeah. Next, please. Yeah, I just Hi. want to understand Uh, about Hello, sir. can we go one by one? I know so many people are raising hands, so can we first? I see Madhur Jain raising hand from long time. So can we first, Madhur, you, and then we can go with the next. हेलो सर। Yes. अभी ड्यूरिंग द सेशन यू सेड कि बच्चा सोशलाइज कैसे होगा, वो Hmm. सबसे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। Hmm. बट यू सेड कि जब बच्चे से पार्क में डाइवर्स लोगों से डाइवर्सिफाइड होता है तो हम उसकी Hmm. सोशलाइजेशन काउंट कर सकते हैं। बट Hmm. द इशू दैट आई एम फेसिंग, आई हैव अ डॉटर, शी Hmm. इज 2.2 years old। Hmm. अभी से ही आई सी कि वो सोशलाइज हो जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, बट शी इज नॉट एबल टू सोशलाइज अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ। मतलब उसको शेयरिंग करने में भी जैसे प्रॉब्लम, मे बी एज फैक्टर हो सकता है। Hmm. बट आपने एक जो सेंटेंस उसमें बोला ना, उसके लिए मैं थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाह रही थी आपके एंड से कि आपकी भी जैसे डॉटर, आई हैव सीन योर पेज ऑल्सो, तो ये Okay. चीज आपने कैसे मतलब उसको कैसे ईज किया थ्रू होम स्कूलिंग? Ma'am, you have one kid or two kids? वन किड। वन। ओके। सो द रीज़न वाई आज ना, जब हम पेरेंट बनते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ आपके, मतलब आई विल गिव इट वेरी क्लियर आंसर। यस प्लीज। 2.2 जो आपने बोला एज है, 2.5 इज़ वेरी स्मॉल। बहुत या अभी उसका अपना एक जोन है, जिस जोन में उसको कंफर्टेबल हो जाने दीजिए बहुत इजीली। शेयरिंग करना, हम सोचते हैं कि अपनी चीज़ किसी को भी दे दो तो वो अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से ये एक जोन ऐसा रहता है जब उसको मेरे पेरेंट, मेरे दादी, मेरी चीज़ें, दैट्स ओके। वो कहाँ से आता है, जब हम उनको बोलते हैं ना हमेशा कि खाना खाओ नहीं तो मैं उसको खिला दूंगी, ये कर लो नहीं तो मैं ये उसको दे दूंगी, तो ये हम शुरू करते हैं पहली चीज़, एंड इट्स अ लॉन्ग डिबेट, आई मीन दैट गोज इनटू पेरेंटिंग थिंग। बट व्हेन आई आस्क्ड यू कि आपका फर्स्ट चाइल्ड है कि सेकंड चाइल्ड, तो जो मेरी अनाया के बारे में आप देखते हो, शी इज़ 2 years एंड शी इज़ सोशल। वाई? बिकॉज व्हेन यू हैव द फर्स्ट चाइल्ड, हम लोग ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपने बच्चे के लिए, हम किसी को भी उसको देते नहीं हैं, हम उसके लिए, मतलब जब दैट्स अ टाइम जोन, दैट्स अ टाइम मशीन विच ट्रेवल्स। आई रिमेंबर कि 5 साल तक हमने अपने, जो मेरा बेटा है उसको एक्सपोज नहीं किया था, लोगों पास जाने नहीं दिया, बिकॉज वी आर सो कॉन्शियस। और जब फिर धीरे धीरे करके हमने देखा कि यार चीज़ें ईजी हैं, ठीक है, ऐसा है वैसा है, एंड सेम वी डिड विद अनाया कि सबके साथ वो घुल मिल रही है अच्छे से, क्योंकि हम ही हमारे बच्चों को बहुत समय तक ना लोगों को देते नहीं है, या बहुत समय तक वी डोंट ट्रस्ट। और ऐसा भी नहीं है हम किसी पे भी ट्रस्ट करना है, लेकिन एट इन फैमिली ऑल्सो, कि जब हमारे साथ ही सोया रहे, नीचे सोएगा तो क्या होगा, या दादा दादी के साथ सोएगा, या चाचा चाची के पास जाएगा तो क्या होगा, अभी कहाँ गया है, अभी क्या कर रहा होगा, कैसे। सो दिस ईज आउट व्हेन यू आर हैविंग अ सेकेंड चाइल्ड। और तब क्योंकि हमने पहले वाले में देख लिया कि अरे कुछ नहीं होता है, हमको खुद पे ट्रस्ट आ चुका है, तो वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है ना, वो एरियल व्यू से होने लगती है, मतलब वो ड्रोन पेरेंटिंग होने लगती है सेकंड चाइल्ड में, विच इज आउट देयर सोशलाइजेशन। एंड डोंट वरी, इट्स जस्ट 2.5, लेट देम टेक टाइम। 5 years तक उनका ब्रेन डेवलप होता है, 5 years तक सिर्फ उनको एक्सपोजर दीजिए, अच्छे लोगों से मिलवाइए, अच्छी जगहों पे ले जाइए। एनिमल्स
एंड नेचर आर द टू थिंग्स विच डेवलप ब्रेन. मेरा बच्चा अगर आप देखोगे वो मड में डले रहते हैं. हमारे पास जो फैसिलिटी है, लकीली टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव दैट. तो वो पूरे टाइम आई हैव क्रिएटेड अ मड पिट देयर, और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, वो नेचर में ही पूरे टाइम पड़े रहते हैं. दैट डेवलप्स देयर ब्रेन, दैट चेंजेस देयर मूड. उनके मूड स्विंग्स कम होने लगे. सो आई होप आई I आंसर्ड have योर. 2 to 3 questions also, please. I'll not take much of your time. You said कि schools के advantages and disadvantages दोनों होती हैं. But क्या struggle that you had faced the very major during homeschooling? स्ट्रगल कुछ भी नहीं है. इट इज़ लाइक आई एम, इफ यू आर इनटू सम इंटेंट ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जिसको जो करना है, मेरा पैशन सी, इफ इट इज़ माई इंटेंट, आई एम डूइंग इट इंटेंशनली, तो जो भी चीज़ आ रही है वो मेरा फटीग होता है, बट आई फाइंड अ आंसर समवेयर. सी, अगर आप सुनना चाहते हो मैं यहाँ पे बहुत परेशान हो जाता हूँ, ऐसा हो जाता हूँ, नो. मेरा घर पूरा पाइल्ड अप रहता है, मेरा मेरा टाइम, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारी अनटाइडी हैं, चीज़ें ऐसी स्कैटर्ड हैं जो तो लोग how you सोचते हैं कि get अरे to know about ये सारी सॉरी, चीजों के बारे में? आपको सॉरी. इन सब चीजों के बारे में, इन स्किल्स के बारे में, कि अब मुझे मड में या नेचर में उसको डालना है, या अब ये मेरा टाइम है, तो हाउ यू फॉर्म दैट टाइम टेबल, और आपको उसके बारे में नॉलेज कहाँ से मिला? Ma'am, it's about research. I am already, doing an NLP course, which is, which works on like how child's brain is being developed and how child's, things psychologically are going well, See, where I they am are also heading a to. psychologist. I am also studying the child psychology at present. The problem मुझे मतलब थोड़ा सा सेशन में ये लगा कि एनी विच वेज एंड में शायद उसको साइंस और एसएसटी से एक्सपोजर लेना ही लेना है, चाहे वो अपने बोर्ड्स में ले, लाइक थ्रू एनआईओएस के थ्रू ले, या कोई ना कोई लैंग्वेज उसको सीखनी ही सीखनी है. तो साइंस, एसएसटी, मैथ्स, जो बेसिक के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका एक्सपोजर स्टार्टिंग ईयर्स में कैसे दें थ्रू मैम, होम? मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा. दिस इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड. आप डेफिनेटली अगर कुछ भी रीच आउट, यू कैन व्हाट्सएप मी योर क्वेरीज एंड डेफिनेटली श्योर, रिवेट श्योर. देयर. बट no, 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 I'm just trying to give chance to everyone. And because I 10 minutes I extended my session from 60 to 70 minutes, so I'll be moving. So we have 15 minutes like left. So to answer you, ma'am, personally I don't feel, जिसको आप SST and साइंस जो बोल रहे हैं ना, कि जो साइंस मेरे हिसाब से, जो केमिस्ट्री जो हम सिखाते हैं बच्चों को, जो एमलगमेशन सिखाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें साइंस की हम सिखाते हैं उनको, लाइक बॉडी पार्ट्स, लाइक science has different different things. And in the higher studies it comes to physics, it comes to chemistry, and it comes to biology. And when I talk about simply chemistry, तो मेरे हिसाब से जिसको हम घर में जब हमारे को कुकिंग सिखाते हैं ना, तो वहाँ पे हम केमिस्ट्री का मेजर जो एजेंडा था, इट वाज नॉट कि सोडियम और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या इधर उधर की बातें, या कुछ दो तीन चीज़ें. हमारा मेन एजेंडा ये रहता है कि हम जिस बच्चे को ये समझा दिया ना आपने कि अगर मैगी बना रहे हो तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें डालोगे, तो उससे कितने मात्रा में डालोगे, तो वो उसका टेस्ट नहीं बिगड़ेगा या क्या होगा. दैट इज केमिस्ट्री. एनीथिंग व्हेन इट मिक्सेस, जब हम कुछ भी उसको न्यू रेसिपी, हम उसको पिकल सिखाते हैं, तो उसमें कितना नमक डालना है ताकि उसका टेस्ट खराब ना हो जाए, दैट इज केमिस्ट्री आई थिंक. और जिस केमिस्ट्री की हम स्कूल में बात कर रहे हैं, अगेन आई एम नॉट एंटी स्कूल, आई एम नॉट हेयर टू टॉक रॉन्ग अबाउट एनीथिंग, आई एम हेयर टू टॉक अबाउट द रियलिटीज विच कम्स आफ्टर एक्सपोजर. और हर चीज़ का कहाँ क्या यूसेज है, उसको अगर हम वही नहीं सिखा पा रहे हैं. केमिस्ट्री में बच्चों को सब कुछ बनता है, लेकिन उनको, मतलब केमिस्ट्री यूज होती है शेफ्स के लिए. मुझे थोड़े दिन पहले पता चला कि ज्योमेट्री यूज करते हैं कौन, जो हमारे यहाँ पे कारपेंटर्स आते हैं. हमको कभी नहीं पता था कि ये जो हमको कंपस या जो हम ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हैं, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेस हम रियल लाइफ में कहाँ करेंगे. बट व्हेन आई रिसेंटली सॉ कि एक कारपेंटर उन सारे टूल्स का यूज कर रहा था, और उसके बेस पे वो कहाँ से क्या कितना काटना है, बिना नाप के, बिना रुक के वो जल्दी से टाइल्स को काट ले रहा था. देन आई गॉट टू नो कि येस, दीज आर द रियल थिंग्स विच रियली नीडेड. सो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको उन्हीं स्किल्स में, उन्हीं लोगों के साथ बिठाऊं, और वहां पे वो सीखे और रियलिटी चेक मिले, रेदर देन ब्रिंगिंग अप अ केमिस्ट्री बुक और उसको पूरा एक पीरियोडिक टेबल लेके आऊं, और जो उसकी लाइफ में एक सरदर्द बन जाए. नो. So that is where I take the teaching to his real, he's learning that skill in a real world. So that is where I head to. Okay, sir. Okay. All right. But And definitely I'll answer your queries whenever you put down to WhatsApp. I saw Farza. Uh, I want to ask, Mac, can you like, I just give want to give me a understand. just a moment? I mean, for a long time, uh, Farza Rizvi, Farwa Rizvi. I'm sorry to spell your wrong name. So she was, asking a question long back. I saw her hands. Yeah. Hey, hi. Hi.
first of all, really thank you for this session. I really हाँ enjoyed it. I really am glad that I got to understand some very important concepts. थैंक यू Second thing, my question is that I just want to understand about the homeschooling communities, and I too want to join them. So, where can I find those communities? Can you please help me with that? last 5 minutes, I'll just take just whenever we are just ending, session, we are extending till 2:40, and till 2:40 to 2:43 I'll be talking about it. Okay. Yeah, sure. Yeah. Okay. Yeah, Mehak, you can go ahead. Yeah, so I want to know that for me it comes like when you are homeschooling your child is surrounded by you only. You are the primary teacher for the child. So the child is basically surrounded by you and the home environment. So इसमें the peer learning gets missed. The child does not get exposure with other same type of children by which we know the child learns. I mean, absorbs through their surroundings, and like my father-in-law, he has still developed the bond with his childhood friends which were with him during his school time, and they are still bonding so well. So what are your views on it? Like, my father-in-law is like, you are missing that part on him. You are not building that for your child. Yes, ma'am. So is your question over? मैम, टू आंसर इट, मतलब Yes, yes. मेरे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया, जो कि सबसे बड़ा, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू क्लैरिफाई हियर व्हेन आई अर्लियर सेड दैट होम स्कूलिंग इज नेवर, bringing school home and becoming his teacher. I am not his teacher. I am taking the governance in my hand. When I said कि मैंने कारपेंटर से उसको कुछ सिखाया, when I said he learned in restaurant, when I said he learned चूल्हा making, when I said he's learned sewing, so मैं क्या करता हूँ? See, one fine day there was one girl, going from we were at our farmhouse, और वहाँ से एक लड़की चूल्हा बेच रही थी, और we called her, मतलब my wife was also there, so many people were there, we called her in and we asked कि ये चूल्हा आप बनाते हो? She said yes. और जब उसने, उसके बाद हमने उससे बोला हम आपसे चूल्हा हमको अभी खरीदना नहीं है, बट कैन यू टीच हिम? तो हमने उनसे 2 चूल्हा भी खरीदे, एंड वी हैंडेड अ बक्स, बिकॉज एवरी टाइम यू व्हेनेवर यू लर्निंग समथिंग फ्रॉम समवन, यू शुड पे फॉर दैट, आई बिलीव इट स्ट्रांगली. सो उनने उसको चूल्हा बनाना सिखाया, और उसके बाद ये रेगुलर प्रैक्टिस हो गई कि एकदम से वो बनाना नहीं सीखा, लेकिन जब भी हम वहाँ जाते हैं और वो वहीं पे ही रहती हैं, वी हैव हर नंबर, वी कॉल हर, और आके वो उसको सिखाती हैं. ही हैज़ अ वेरी नाइस बॉन्ड विथ हर, दे ही इज़ लर्निंग दैट स्किल, और अब वो एक अच्छा चूल्हा बना लेता है. ऐसे ही स्विमिंग भी कोई और सिखा रहा है. ऐसे ही जब वो वीलॉगिंग सीख रहा था, तो वीलॉगिंग में जब वो इंटरेक्ट कर रहा था सो मेनी पीपल, ही गोज टू सम अकेडमी, ही गोज टू म्यूजिक क्लासेस, वहाँ पे उसके, I am not his teacher. I always said homeschooling is taking the governance in your hand. Homeschooling is giving them a path. Homeschooling is removing the obstacles. Homeschooling is जो उसको आगे नहीं पता है कि 10th 12th में क्या होना है, लेकिन मुझे पता है, तो मैंने उसकी 10th 12th का प्लान करके रखा है, क्योंकि आगे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है. लेकिन अभी उसका करंटली क्या होना चाहिए, दैट इज़ होम स्कूलिंग. होम स्कूलिंग इज़ नेवर आइसोलेटिंग योर किड एट योर होम. It is never. It is never becoming his teacher. Homeschooling is outsourcing whatever skills he can get to the best person in the industry available, best person in the surroundings available. तो मैं बस वो करता हूँ जहाँ पे वो इंस्पायर हो सके, क्योंकि होता क्या है ना, मैं जस्ट एक्सटेंड कर रहा हूँ. एक चीज़ जो हमेशा मुझे प्रॉब्लम करती थी, कि वही टीचर म्यूज़िक भी सिखा दे रहा है, वही टीचर बच्चे को जब फ्री है तो फुटबॉल भी खिला दे रहा है, वही टीचर क्रिकेट भी खिला दे रहा है बच्चों को स्कूल में, तो बच्चे इंस्पायर नहीं हो पा रहे हैं उनसे. क्यों नहीं इंस्पायर हो पा रहे हैं? क्योंकि the person who is teaching is actually having a multiple roles in school. Just they are there for the survival, they are a teachers teaching. मैं सोचता हूँ इस दुनिया में आईएएस से भी ज़्यादा अगर इज्जत मिलनी चाहिए, और पैसा मिलना चाहिए, और रुतबा मिलना चाहिए, वो टीचर्स को मिलना चाहिए. तभी ये देश चेंज होगा. वाई? बिकॉज देन, जैसे ही आईएएस क्या रहता है ना, लोगों को 10 10 साल तैयारी करने के बाद भी लोग आईएएस बनने को तैयार हैं, बिकॉज दे विल गेट दैट रुतबा. टीचर्स को रुतबा नहीं मिल रहा है, ऑल्दो दे आर शेपिंग अवर वर्ल्ड, दे आर शेपिंग अवर द बैकबोन ऑफ दिस नेशन, बट क्योंकि वो नहीं मिल रहा है, तो वो उस चीज़ में थोड़ा सा लैग कर रहा है हमारा देश. सो नॉट जस्ट देश, बहुत जगह पे. सो धीरे 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 वो चेंज आएगा. एंड अगेन टू आंसर यू, इट्स नॉट आइसोलेटिंग. आई नेवर आइसोलेटेड हिम. आई नेवर गो, अगर वो वहाँ पे मड में खेल रहे हैं, वहाँ पे वो मेरा बच्चा रोप क्लाइंबिंग सीख रहा है, तो कोई कैलिस्थेटिक्स टीचर या योगा टीचर आके, जो कि जिमनास्टिक्स जानता है, वो आके सिखाता है. और
पहले मैं बाकी जगहों पे भी उसको भेजता हूँ जहाँ पे बहुत बच्चों से वो इंटरेक्ट करता है सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ, तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। Right, I got that. But how about that bonding, long-term bonding, which I was talking about, which my father-in-law raised a point on? मैम वो बॉन्डिंग तो बच्चा खुद बनाएगा, अगर आपके भी जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं। बचपन के फ्रेंड्स। मैम मेरे कोई या बचपन के फ्रेंड्स नहीं है, मेरे मेरे फ्रेंड्स जो जो आई हैव वन फ्रेंड हु वाज इन लाइक स्कूल इन 8th क्लास जो मुझे मिला, एक फ्रेंड है जो टीसीएस में मेरे साथ था, एक इन्फोसिस वाला है, एक इधर वाला है, एक उधर वाला है। सी इट्स नॉट टाइम स्पेसिफिक, आई टेल यू। फ्रेंडशिप इट्स समथिंग जो हमको सिखाना, इट्स अ सब्जेक्ट विच पेरेंट्स शुड टीच देयर किड कि फ्रेंडशिप क्या होती है। फ्रेंडशिप वो नहीं होती है जो तुम्हारे साथ जहाँ पे तुम जा रहे हो सबसे, व्हेन आई से कि ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, नो दे आर देयर कलीग्स। हम सबसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, तो हमको धीरे धीरे ये भी एक चैप्टर है जो हमें हमारे बच्चों को सिखाना पड़ेगा, जो मैं सिखाता हूँ बहुत बार। सो दैट्स अ डिफरेंट जोन, आई मीन डोंट जस्ट राइट। से कि इफ योर फ्रेंड ग्रैंडफादर इज लकी दैट ही हैज, मतलब बट द अदर्स हु आर डो नॉट हैविंग किड्स जो उनके नर्सरी में या फर्स्ट में उनके साथ थे, अगर वो उनके दोस्त नहीं है, दोज आर नॉट अनलकी पर्सन आई थिंक। फ्रेंडशिप Right, इज right. समथिंग And जिसके how साथ आप about ईज आउट हो सको अपने, like यू नो सॉरी। picking up, suppose the child wants to pick up, go for government exams, for example, मैम IAS, इज IPS हु later इज on. आस्किंग दिस? I'm only ओके, asking सो यू आर, because we ma'am, they can था take कि that आगे they जाके अगर board गवर्नमेंट exam, एग्जाम्स आईएएस any आईपीएस इसमें। competitive exams. You just have to have the certificate from NEOS. If you are completely homeschooled, if you are hybrid, you can get the school certificates. The NEOS certificates are same as a school. So no competitive exam asks for like which board, which school you are. They just talk about the quality of education, the quality of the skills you have. So this is completely taken care. Can we move to the next one? Sure, thank you so much. Thank you. And even if anybody is having any question which we are not covering here, which you is not able to ask, you are free to send me WhatsApp. So I will, because post this I am having actually from 3 I have a next batch workshop. So that's where I am rushing. So okay, the next हेलो। question, anyone? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था। Yes, Kamal ji, बोलिए। सर मुझे इंग्लिश आते हैं, मैं हिंदी में बोल लूंगा जी। हाँ, मेरा परफेक्टली फाइन, एक्सेंट भी बस गाँव थोड़ा वाला सा ही है जोर सर। से बोलिएगा कि आपकी हाँ आवाज जी। मेरे पास आ जाए। तो सर जो होम स्कूलिंग करेंगे हम, जैसे हाँ जी। जो सर मेरी फैमिली के या मेरे बायस हैं, हाँ, वो मेरे बच्चे में ना जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब बायस से बचाऊं बच्चों को, क्योंकि मेरे मैं आसपास जो समझा नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से पूछेंगे, मैं समझ नहीं पाया, सॉरी। जो बायस नहीं होते जी, ह्यूमन बायस। ह्यूमन। बायस पूर्वाग्रह है। ओके। Biasness, बायसनेस। biasness. ओके, बायस्ड, ओके Facing ओके ओके, human बोलिए बोलिए बोलिए। biasness. हाँ जी जी। जी जी जी, बोलिए बोलिए। उससे कैसे बचाऊं सर? जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके माँ बाप को बायस है, मतलब अभी भी बच्चे ऐसे नहीं करना, ये होता है, भूत में विश्वास रखना, या छींक मार दी, बिल्ली रास्ता काट गई, और भी बहुत तरह के हैं। इससे मैं कैसे दूर हटें? इनसे सर कैसे पेरेंटिंग, परमात्मा की पूजा आप करने लग गया, आपको इन सब चीज़ों पे भगवान के विश्वास कारण है? ये सब हो गया। ओके, नहीं नहीं, मैं आपसे एक सिंपल से पूछ रहा हूँ। देखिए, पेरेंटिंग में ना हम एक गलती कर देते हैं, और अगेन मतलब कोई मुझे पहले इस चीज़ के लिए चिल्लाए या डांटे कि हम यहाँ पेरेंटिंग क्लास के लिए नहीं है, हम यहाँ पे होम स्कूलिंग के लिए हैं, सो आई एम सॉरी, बट अगेन इट ऑल स्टार्ट्स, पेरेंटिंग इज द मेजर अम्ब्रेला। पेरेंटिंग में सब लोग के साथ दिक्कत क्या हो जाती है ना, कि हम अपने बच्चे को परफेक्ट कैसे बनाएं, परफेक्ट कैसे बनाएं, परफेक्शन। हमारे बच्चे को हम म्यूजिक क्लास में डाल रहे हैं तो हमारा बच्चा आधे में छोड़ के आ रहा है, हम स्विमिंग में डाल रहे हैं आधे में छोड़ के आ रहा है, हम यहाँ जा रहे हैं। सो पेरेंटिंग एक्चुअली परफेक्शन नहीं है, पेरेंटिंग इज अ रिफ्लेक्शन। मैं अपने बच्चे को 2 साल से स्विमिंग कराना चाह रहा था, बट वो नहीं सीख रहा था, बट द डे आई ऑल्सो टुक टाइम एंड आई गॉट इन टू दैट थिंग, और मैं भी उसके साथ स्विमिंग करने लगा। 3 महीने में हम दोनों स्विमिंग सीख गए, और बहुत अच्छी स्विमिंग सीख गए, है ना। सो रिफ्लेक्शन जो है, आप उस बात को समझिए कि आप अगर उसको समझाएंगे, जैसे मेरी वाइफ जो है ना, वो उसको लगता है कि 2 दिन नॉनवेज खाया जा सकता है, 5 दिन नॉनवेज नहीं खाया जाता है, तो जो 5 दिन नहीं खाते हैं उस 5 दिनों में शायद भगवान ज़्यादा इज ऑल ऑन धरती अवेलेबल सिटिंग बिसाइड्स, और जो 2 दिन वो खाती हैं उस दिन कुछ नहीं होता। सो इट्स ऑल इट, बट ये हमारी ड्यूटी है कि हम कौन से सुपरस्टिशन को, कौन से बायसनेस को ले रहे हैं। कंपैरिजन से बाहर निकलना इज़ द फर्स्ट थिंग। जब आप नहीं सोचेंगे इस चीज़ के बारे में, तो आपको मतलब क्या है कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता। और थोड़ा बहुत मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, हम भी जब बच्चे थे ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे ही थोड़ा सा एक जोन आता है ना, जब हम
टीनेजर्स की एज में आ जाते हैं, जैसे ही वो टीन एज आती है तब बच्चा डिफरेंट एक्टिव, दे एक्ट वेरी डिफरेंटली, उनका एक अपना अलग जोन रहता है। तब उनके लिए आप एक नॉर्मल एडल्ट हो जो अपनी बातें दे रहे हो, तो उससे पहले जितना उनको आपको एक सरफेस देना है, उनको ग्राउंडेड, उनकी रूट्स जमीन में कितना अंदर वो रहे, वो क्या करना है, उड़ने की उड़ान वो खुद ही करेगा। 13 के बाद वो चेंज हो ही जाता है। तो आप अभी बहुत सारी चीज़ ऐसे सोच रहे हैं जो बाद में क्या होंगी, नहीं। अभी आप थोड़ा सा इनकलकेट कीजिए उनको धीरे धीरे, कि सुपरस्टिशन अगर जैसे आप बोल रहे हैं या बायसनेस आप बोल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को शायद कहीं ना कहीं रिड्यूस खुद ही कर सकते हैं अपने अंदर लाके। बिकॉज इट्स ऑलवेज रिफ्लेक्शन, क्योंकि मेरा आरित जो भी वो करता है, वो हर वो चीज़ जो मुझे या मेरी वाइफ को वो देखता है ना, इट रिफ्लेक्ट ऑन हिम, इट यूजुअली डज। सो आई होप मैंने कमल जी आपके आंसर दिया। Hello. तो वी आर टेकिंग टू मोर लास्ट क्वेश्चंस प्लीज। Hello. Hello, यस। sir. Hello, sir. इज इट अजीत पटेल, आई थिंक अतीत पटेल। Yeah. Hi. Uh, so I have a simple question. यस। Okay, as we probably, so my daughter is still 6 years, हम्म। so she's in first standard. But as we progress, हम्म। how are you finding tutors? Like, let's say fourth, fifth standard mein aa gayi and she, wants to study. So how does that work out? Like, you're not teaching, but so I'm talking about the ट्यूटर, subjects, not the extracurriculars. Extracurriculars, I know we find people. आप कौन सा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर वो स्कूल में ही रहेगा और उसके ट्यूटर्स कैसे, कि हम होम स्कूलिंग करेंगे तो उसके ट्यूटर्स कैसे? होमस्कूलिंग है, होम होम स्कूलिंग, स्कूलिंग तो है ना। होम स्कूलिंग जब आप कर रहे हो तो मुझे ये बताइए कि आप कौन सी बुक्स फॉलो करोगे, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करोगे? एनसीईआरटी। ओके। सो एनसीईआरटी अगर आप बोल रहे हैं, सो एनसीईआरटी में भी व्हाई आर यू कंसर्न, सी यू आर कंसर्न अबाउट कि वो चैप्टर या जो उसमें सिखाया जा रहा है वो बच्चा सीखे, कि क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में ना सबसे बड़ा जो मिसलेड कॉन्सेप्ट है ना, वो है फिफ्थ से लेके एट्थ क्लास या नाइन्थ क्लास तक के बच्चों को बहुत मिसलेड किया जा रहा है, बिकॉज दैट इज अ बैकबोन एज, जो कि जब बच्चा मेच्योर हो चुका है, जब बच्चे को एक्चुअली ऐसी चीज़ें दे दो। हमारे सिलेबस की ना बहुत सारी चीज़ें, दिस टू मच, जस्ट वाई टू मच, बिकॉज एक बुक अगर आपको जो 400 रुपए की बुक है ना, अगर उसमें 20 पेज रहेंगे ना, तो आप वो चीज़ बोलोगे कि यार नहीं ये तो पतली बुक है, हमको तो मोटी बुक ही चाहिए। तो ये मेंटेलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी नहीं होगी, बहुत सारे लोगों की है। 15 मिनट की अगर मूवी बनने लगेगी ना तो लोग बोलेंगे कि नहीं, लेकिन अगर वो 3 घंटे की मूवी बनानी है तो बुक को भी 300 पेज का बनाना है, 300 पेज का बुक बनाना है, तभी वो बुक एक करिकुलम, तो जो पब्लिकेशंस रहते हैं ये सब, देर टू मच अवेलेबल, बट देर इज, अगर आप वैल्यू कंटेंट की बात करेंगे जो आपको सिखाना है, सो वो बहुत कम है, वो मार्क्स के लिए जरूरी नहीं। अब आप बोल रहे हो हाउ यू फाइंड ट्यूटर्स, तो पहली बात, मैं ऑनेस्टली मैं सब्जेक्ट्स को उतना ज़्यादा मैं फॉलो नहीं करता हूँ, बट टू गिव यू अ सजेशन या टू गिव यू एडवाइस ऑन दिस, आप जो भी टीचर्स हैं ना, जिन ऑब्वियसली अगर आप स्कूल में है वो बच्चा, और आपके सोसाइटी में भी आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से कोई ना कोई टीचर्स होंगे जो स्कूल जाते हैं पढ़ाने, अगर आप उन टीचर्स से ही बोलेंगे कि हमारा बच्चा आपके यहाँ पे शाम को 1 घंटे आएगा डेली, और आप उसको सिर्फ ये बुक मैंने खरीदी है, आप ये वाला टॉपिक उसको क्लियर कर दीजिए, यू यू कैन इजीली डू दैट। क्योंकि अभी आप टॉपिक क्लियर करवाओगे, वो सिलेबस के लिए रश भी नहीं करेंगे, वो टॉपिक ही क्लियर करेंगे आपको। मार्क्स से ना, सबसे पहले तो हम सब लोगों को, चाहे जो होम स्कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, हम सबको मार्क्स मेंटेलिटी से बाहर निकलना है, बिकॉज या दैट इज एग्जैक्टली, वो ब्रेकिंग तो देयर बैकबोन। नो डाउट, उसकी नो वजह से ना वो डाउट। स्किल नहीं सीख पा रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं सीख पा रहा है। एनसीईआरटी आया था बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन बेसिकली, प्लीज। श्योर, थैंक्स थैंक्स आई एम यस। सॉरी बट बिकॉज आई हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अदर, वो और मेरा 2:55 पे वो वाला खुल जाएगा, सो एंड हेलो, लास्ट क्वेश्चन, यस। यस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली मुझे पूछना था, अभी मेरा बेटा 8th स्टैंडर्ड है, अभी फाइनल एग्जाम्स हैं, ही विल कम इनटू 9th, हम्म। एंड वो राइफल शूटिंग एंड ड्रोन में मेन उसको इंटरेस्ट है, एक्सीलेंट। और राइफल शूटिंग में ही इज लाइक नेशनल प्लेयर। अब हम प्लान कर रहे हैं कि 9th स्टैंडर्ड में, तो वो रिस्क तो नहीं रहेगा कि 9th स्टैंडर्ड में होम स्कूल करना, कॉज मैम उसको जब, फ्रैंकली स्पीकिंग ही इज नॉट गुड इन स्टडीज दैट मच, क्योंकि उसका मेन इंटरेस्ट यही है कि आई वांट टू मेक करियर इन शूटिंग। सो लाइक बस मेन यही था कंसर्न कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैम मैं आपको कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ, कि सबसे हम्म। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट ही इज़ अ नेशनल प्लेयर। जब आपने नेशनल प्लेयर बोला तो मेरे को गूजबम्स आए, और क्यों आए, क्योंकि नॉस्टैल्जिया होती है। मैं फिफ्थ क्लास में ना, मैं आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, आई रिमेंबर आई गॉट अ नेशनल सर्टिफिकेट इन मार्शल आर्ट्स, ओके,
Okay, बट great. मेरे पास ना कोई था नहीं कि मुझे कोई ये बता सके कि मार्शल आर्ट्स में भी करियर बनाया जा सकता है। हाँ उसके जी। बाद मेरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई। मैं थ्रू आउट अपनी 12th क्लास तक मैं स्कूल की वॉलीबॉल टीम का भी कैप्टन रहा, फुटबॉल टीम का भी, क्रिकेट टीम का भी कैप्टन रहा, बट मुझे किसी ने ये हम्म, समझाया नहीं, बताया नहीं कि क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज़ आज बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास दो क्लैरिटी हैं जो लोगों के पास नहीं रहती हैं, जितने भी बाकी हम्म, लोग हैं। यू नो, आई नॉट से दे आर अनलकी, बट यू आर लकी इनफ कि आपको आपका बच्चा ये बता पा रहा है कि मुझे राइफल शूटिंग करनी है। आपको वो right. बता ही नहीं पा रहा है, उसने दुनिया को बता दिया बिकॉज इज द नेशनल प्लेयर। ओके, हम्म, उसके बाद अब ये आपका है। जब मैंने आपको बोला ना टेक द गवर्नेंस इन योर हैंड, मुझे ये बताइए कि उसको इंग्लिश बोलते बनती है, उसको हिंदी बोलते बनती है, हाँ जी। उसको एक्चुअली लिखते हम बनती है? गुजरात में हैं, वो गुजराती कच्ची, एंड आई एम नहीं, फ्रॉम उसको हरियाणा। लिखते भी बनता है? बिल्कुल। हाँ इसके जी। अलावा एक नेशनल प्लेयर को क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ जी। तो आपका मतलब मैंने आंसर बहुत शॉर्ट में बताएं क्यों दिया? बिकॉज हम्म, बहुत ज्यादा इस चीज पे बोलूंगा ना तो चीजें क्या है, you have raised a champion and let him become a champion. Just support him. राइट। हाँ जी। वही बस मेन कंसर्न वही था एक्चुअली। उसके चाइल्डहुड में हमने उसको बीच में 1 ईयर के लिए किया था होम स्कूल, हम्म। बट उस टाइम कोविड की वजह से, एंड पब्लिकली मींस इट वाज लाइक कि क्यों किया, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ गए क्या, ये वो, मींस यू नो द सोसाइटी। तो इसलिए अब वापस यही प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इसका इस बार 3 पॉइंट से इंडियन टीम सिलेक्शन में नहीं हो पाया था। नो तो इश्यूज मैम, आप हाँ सिलेक्शन पे जी। मत जाइए, आप उनकी सिर्फ स्किल्स पे जाइए। अभी लाइफ में बहुत टाइम है, आप उसको उसकी हाँ स्पीड जी। से ग्रो करने दीजिए। ही विल डेफिनेटली डू वंडर्स। बस वही था कि अगर होम स्कूलिंग करके एंड फुल टाइम हम इसमें करते यू हैं, शुड क्योंकि गो, या। इफ यू कैन यू शुड। ओके सर, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Hi. सर ए नहीं थी, हाय। Yeah. So you talked about something called the hybrid system that you started with for your child, यस, wherein you sent him 3 days to the school and then four यस, days you did the homeschooling. So how यस। does that work? Like the school was okay with just स्कूल कैसे sending माना, him? राइट? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि हाउ डिड स्कूल अग्री टू दैट। सी हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग बहुत फैंसी स्कूल, सबसे पहले तो आजकल इतने फैंसी स्कूल्स हम ज्वाइन करते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, मुझे एक बात बताइए, आप जब कोई रोड कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, अपना घर कंस्ट्रक्ट कराने के लिए आप किसी को एक टेंडर दे रहे हैं और उसके लिए आप उसको सारे पैसे दे रहे हैं, वो घर वो बोल रहा है मैं 3 साल में बनाऊंगा, उस घर में वो बीच बीच में दीवारें आधी अधूरी छोड़ दे रहा है बनती हुई, और उस वक्त पे आपको वो बोलेगा कि आप बाद में खुद ही करा लेना, या जब भी कुछ बिगड़ रहा है तब आप उसको वो बोल रहे हो सर ये जो आपने करवाया है ये तो नहीं, ये आप नहीं बोल रहे हो, ये वही बोल रहा है आपको कि ये आपकी दीवार टूट गई है या बाद में बनवा लेना। अब मैं वापस आता हूँ, क्यों मैं ये थोड़ा सा एग्जाम्पल बोल रहा था, क्योंकि मैं आई एम रशिंग ऑल्सो, एल्स आई वुड हैव टोल्ड यू दिस इज अ 10 मिनट टॉपिक फॉर मी, आई कैन टॉक लॉट ऑन दिस। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, स्कूल ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम पैसा देते हैं, हम बोलते हैं हमें ये सर्विस चाहिए आपसे, फिर हम जाके बोलते हैं वहाँ पे कि वो हमको बुलाते हैं पीटीएम के टाइम पे कि यार आपका बच्चा ना ये नहीं कर पा रहा है। रेदर वी शुड बी इन अ पोजीशन कि यार हमने तो स्कूल उसको भेजा ही इसलिए था कि वो ये सीख सके कि ये क्यों नहीं कर पा रहा है, पर वहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं होता है। हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे हम उनको ज़रूर बताते हैं कि सर हमको ये करवाना है, आप ये कर दीजिए, पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे तो हम बोल देते हैं कि यार हमने पैसे काहे के दिए हैं। तो मेरा ना सबसे पहला कंसर्न था, मैंने स्कूल बहुत सारे स्कूल्स ढूंढ के फिर एक ऐसा स्कूल ज्वाइन किया था जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, जहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी थी, और ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जो मैंने शुरू में ही बता दी थी कि यार कभी कभी ना ऐसा होगा। आई नेवर टोल्ड देम कि मैं होम स्कूलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब बताने की बातें नहीं रहती हैं। और मेरा यही था कि यार कभी हमको बाहर जाना पड़ता है, मेरी जॉब मेरे को नहीं, मेरी वाइफ इधर है, मैं बाहर हूँ, और हम लोग को ये प्रॉब्लम है। दे वर क्वाइट शुरुआत में 2 दिन 3 दिन, और धीरे धीरे उसकी अटेंडेंस कम होती है, कभी कभी कुछ होता है, सब टीचर्स को मुझे बताना नहीं, बट आई वॉज हैविंग प्रिंसिपल मैम से मेरी बात हुई थी, एंड लकीली उनने उस चीज़ को शुरुआत में माना, धीरे धीरे हुआ। और जब आप ऐसे स्कूल्स में जाते हो ना जो बहुत अथॉरिटेटिव रहते हैं, जिनको हम सोसाइटी को दिखाने के लिए बच्चों को एक सोशल सर्कल के लिए ऐसे स्कूल्स में डालते हैं, वहाँ पे हमें सुनना पड़ता है बहुत। So that was the one thing which I found that school, and I'm lucky. And that school, principal, I am not at all fed up with that school. मुझे आज भी वो स्कूल अच्छा लगता है। So Also that so we come from a very small town. So when you हम्म, talk about like you got
your kids calisthenics teacher and Hmm. whatnot, so we come from a very small town wherein we don't have much opportunities and areas where we can send the मैम kids. So would homeschooling be नहीं a नहीं good idea नहीं for नहीं मैम, this? होम स्कूलिंग में और दूसरी चीज़, स्मॉल टाउन में सबसे ज़्यादा अच्छे लोग मिलते हैं। हमको अच्छे लोग चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स नहीं चाहिए। इन फाउंडेशन ईयर्स में हमको अच्छे लोग चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए अच्छे रहें, हमारे बच्चे उनके साथ सेफ हैं, जो ग्राउंडेड है, जो इमोशनल। क्योंकि आप सिर्फ सिखा रहे हो क्या, जो बहुत ज़्यादा आप अच्छे लोगों के पास जाओगे ना, वो आपसे फीस भी बहुत ज़्यादा लेंगे और वो इमोशन लेस चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे। लेकिन जिस स्मॉल टाउन की आप बात कर रहे हो, मैं भी टियर 4 सिटी से हूँ, और हमको कैलिस्थेनिक्स, जब मैंने वर्ड बोला तो क्योंकि हम भी एजुकेटेड हैं उस चीज़ में और ये मेरा खुद का भी रिफ्लेक्शन था, सो आई वेंट टू इट। सो हमको बहुत अच्छे लोग चाहिए रहते हैं। आई फाउंड अ नाइस कोच हु इज़ हैविंग गुड ग्राउंडेड वैल्यूज़। बाकी सारी चीज़ें ना आजकल यूट्यूब सिखा दे रहा है। अगर कोई अच्छा टीचर मिल गया, उसको थोड़ा बहुत बनता है, तो वो वहाँ पे मैनी टाइम्स द टीचर हु कम्स इन, वो यूट्यूब से देख के वहाँ पे चीज़ें सिखाता है ना, आई एम ओके विद दैट। पर वो उसको ग्राउंडेड चीज़ें सिखाता है, रूट्स की चीज़ें सिखाता है, इमोशनल अटैच्ड है। So that's where, don't worry about that. So I am just, putting a hard close. Whoever has any question can reach out to me on WhatsApp today. कल हो सकता है कि चीज़ें बहुत पाइल अप हो जाएं, बहुत मैसेजेस आ जाएं, सो आज आप भेजिएगा। मैं एक चीज़ आपसे और शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको मुझे दिखाना था। गिव मी अ मोमेंट एंड आई विल शेयर दैट अगेन। शेयर माय स्क्रीन। ओके। एंड ओके। एंड एंड okay. Okay. So once you go to homeschooling ideas, okay? Once you go to homeschooling ideas, आप जब भी होम स्कूलिंग आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे, ये एक वेबसाइट है जो आप बुकमार्क भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाओगे, जहाँ पे मेरी पूरी जर्नी रहती है। मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं मार्केट के लिए, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। सो मेनी थिंग्स आई राइट, ओके। एंड उसके अलावा यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ जो आपको हेल्प कर। ओह, इज द स्क्रीन शेयरिंग पॉज्ड? We can't see. Yes, Okay, sir, we can't see give me anything. a moment and let me know if that is, we are able to see it. Are we able to see? Okay, let me know if you guys can now able to see. Are you guys able to see this? Yes, it's visible Okay, now. so that's my website which I developed, क्योंकि मैं आईटी से था तो मेरे को ये करना था। सबके लिए बहुत सारी क्वेरीज आती थी, रोज मेरे को अराउंड 100 DMs आते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। Somebody is not online, so I want to moment, मैं पहले म्यूट कर दूं सबको। Okay, mute all. Okay. आता मी हरे कृष्ण हरे राम मैम राम ओके, सो इट इज नाउ म्यूटेड। तो ये एक वेबसाइट है जो मैंने बनाया, क्योंकि मैं सबको डीएम्स पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, यूट्यूब पे कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। सो वेयर आई डेवलप्ड दिस वेबसाइट फॉर एवरी पेरेंट हु इज रियली एंथुसियास्ट। सो यहाँ पे अगर आप पूरी वेबसाइट तो देखो, बट ये एक टूल मैंने बनाया है विच हेल्प्स एवरीवन। इट इज फ्री, लाइक 90% ऑफ दिस इज फ्री। जहाँ पे आप जाओगे, सुबह को ये वाइल्ड विले क्लब है, जहाँ पे आप जाओगे, आपका बच्चा, अगर यहाँ पे आप जाओगे, यू एड योर चाइल्ड, यहाँ पे अपने बच्चे का टाइम अभी 4 years तक के लिए है मैं, और इसमें धीरे धीरे बना रहा हूँ। जैसे आपका बच्चा अगर 2 साल का है, जैसे मैं ये अनाया के लिए, माई वाइफ यूजेस इट। सो अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो आप ये 3 साल सेलेक्ट कीजिए। वो क्या करता है, वो क्वाइट रहता है, मिक्स्ड है, वेरी एक्टिव है, जो भी है सिलेक्ट कीजिए, उसको सेव कीजिए, एंड यूल गेट द एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए। इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप उनको करा सकते हो। उनकी एज स्पेसिफिक क्या स्किल्स उसको होनी चाहिए, कैसे सिखानी है, ये सब चीज़ है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इन्हीं सारे एक्टिविटीज़ के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। इट इज़ ऑल फ्री। एंड यस, post this, we have also, because I have to invest a lot of my time, my whole time is going into it. And I have created a wild village circle also, where we have a 3 month onboarding system। जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो रियल एंथुसियास्ट हैं होम स्कूलिंग के, जो आते हैं, जहाँ पे मैं कम्युनिटी एक्सपर्ट्स को भी बुलाता हूँ, जहाँ पे अराउंड द ग्लोब जो भी चल रहा है, जो भी होम स्कूलिंग कर रहे हैं सक्सेसफुली, जिनको जो आए वो आते हैं। मंथली एक लेक्चर होता है वहाँ पे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम उनको करवाते हैं, नॉट जस्ट टूल्स। वी ऑल्सो गिव द करिकुलम्स बनाते हैं, वी ऑल्सो गिव टाइम टेबल्स, वी ऑल्सो शेयर द कम्युनिटी पीपल से आपको कनेक्ट करवाते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी भी बन जाती है हमारी, कि हमको अगर इतने साल का है तो हमको उसको क्या सिखाना चाहिए, इस साल का क्या पूरा रहेगा। सो इट्स अ 3 month प्रोग्राम वेयर व्हाट्सएप पे यू आर कनेक्टेड विद अस 24/7।
वी रिप्लाई टू यू, वी गिव यू ऑल द गाइडेंस। आपको आपका मेल्स हमारे पास रहते हैं, हमारा आपके पास रिसोर्सेज पहुंच जाते हैं, सो मेनी थिंग्स। सो दिस इज वन कम्युनिटी वेयर वी आर ऑलरेडी हेडिंग, वी हैव इट। सो ये चीज़ थी, तो इसके लिए मुझे बताना था। बट कम्युनिटी इज पेड, एंड इफ़ यू स्टिल वांट यू कैन एंजॉय दिस थिंग। आप अपने बच्चों के लिए ये टूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, एंड सून वी आर एंटरिंग इट। आई एम जस्ट प्लानिंग टू मेक इट टिल 10 years, कि 10 साल के बच्चों तक के लिए क्या क्या करवाना है, कैसे कराना है। बिकॉज उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि जैसे एक मैम ने बताया कि उनका बेटा राइफल शूटिंग में नेशनल चैंपियन है, तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं तो उनकी उस चीज़ में दिन रात लगवा दो। उसको इतना इंटरेस्ट दिलाओ, उसको इतने नए लोगों से एक्सपोजर दिलाओ उस पर्टिकुलर फील्ड में, बिकॉज यू आर लकी इनफ कि उनके पास इतनी जल्दी एक ऐसी चीज़ आ चुकी है जहाँ पे वो बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है, कर सकता है। सो एज मैटर्स अ लॉट। सो this is what I had for today, and I hope I answered you all. It was wonderful meeting you all, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और मैं बस आपसे यही चाहूँगा कि if you really liked it, you can DM me what you did not like, you can DM me what you liked, you can DM me. I'll definitely reply to you all, guys. And Sonia ji, if you still want, your hand is raised, if you still want to ask something, please reach me out on WhatsApp. I'll definitely reply to everyone. Whoever was there in the workshop, I'll reply definitely to Sir, all the I ones. think on WhatsApp only admin can message like this. No, you can message me personally on WhatsApp. You can message me personally. Okay, okay, That okay. group, because if I'll open that, it will be flooded with, हमारे पास क्या होता है ना कि फिर नए दूसरे messages आने लगेंगे. So Okay, okay, that's why I okay. kept it quiet. Okay, okay. It's All okay. right. Thank you. Thank you, Thank everyone. It was really nice meeting you all. You guys are great, and you guys are already into a zone जहाँ पे आप लोग एक पड़ाव पार कर चुके हैं, and definitely think about your kids, because ultimate goal is their happiness, their childhood. Thank you so much. You Thank guys were really you. nice. Thank you, sir. It was a Thank really you. nice session. Thank you. Thank I'll you. be checking your Thank you, messages sir. on. Thank you. Thank you. Thank you so much. See you.